हाँ सर, ने कर देंगे, अभी थोड़ा टाइम लगता है, डोंट वरी, तो आपको अपडेट हो जाएगा। राइट। देखो, पहले तो पेपर का पैटर्न समझते हैं। लेट्स वर्क ऑन द पैटर्न फॉर द जेई एग्जामिनेशन। एक बच्चे कुछ कन्फ्यूज़न है, बी आर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल, बी आर्क इज़ अ डिग्री, मतलब एक कोर्स का नाम है। जैसे इट इज़ लाइक एन बी टेक, इट इज़ लाइक MBBS, सो इट इज़ अ बी आर्क। For the BArch examination, if you want to take, if you want to pursue a graduation as an architect, so you have to complete BArch degree. And for to getting the admission for the BArch college, there are 2-3 options. First is JEE paper 2. It is conducted by NTA, and second thing is it is NATA. And of course, there are some private institutions, they directly have their entrance examination, separate entrance examination. Majorly, the student focus on the JEE and for the NATA. Clear? For the JEE examination, we are not going to discuss today anything related to the NATA here. Of course, little bit information should be there, what are the difference between the NATA colleges and JEE colleges, and but again, our prime focus should be here. If you say for the JEE examination, JEE paper 2, it is going to be the 400 marks, in which they will give you the percentile. So percentile is different from the percentage, as you know. In the 400 question paper, the paper is divided in some sections, like that is maths. It is going to ask you 25 questions. 20 questions will have the negative marking, and 5 questions is going to be have numerical type questions. You have to put the value. There is no negative marking, so make sure that 5 questions attempt. Don't leave it unattempted, right? So mathematics 25, and then every question is having the 4 marks, so it is going to be have the 100 marks paper for the mathematics. Second things come to the aptitude. It is going to be have 50 questions, and we can also divide in 2 segments, 35 plus 15. 35 is like related for the plan, elevation, mirror, unfolding, folding. This is called architecturally architecture drawing related information. It is going to be started in first semester until the 6th semester. You are going to work for architectural drawing in your semester, in your college, right? So it is going to 35 questions, so it is multiplied by 4, it come to the 140. 15 questions is related to the GK. GK can be from the architecture vocabulary, building material, it can be current affair, it can be basic general knowledge, like what is the capital of Maldives. So it is nothing related to the architecture, but it is common in the GK knowledge, GK. So 15 question, and for the 4 you multiply, it is going to be 60. So we can sum up with 200 marks. Third thing is drawing. It is quite subjective, because here mathematics and aptitude part, it is like, it is objective. Either you can be right or you can be wrong. But in drawing, just a second, how will I add the, okay, wait, let's wait for them. So drawing, it is going to be have right. So 100 marks for the mathematics, 200 marks for the aptitude, and for the 100 marks, the last point is drawing. It is going to be have 2 questions. You have to attempt 2 questions, 50 marks. Clear? I will tell you what should be the strategy during the exam. That drawing part has to be work at the last. First, you can work from the aptitude.
specifically 35 questions, and then you can work out for the 15 questions, then come to the mathematics. It can be the one strategy. Second strategy can be that you first start from the mathematics, then you come to the aptitude, but make sure that it is like the most preferable. The drawing should be at the last, because drawing is something we cannot come to the perfection. Like we cannot say now my drawing or my sketch is completed. There is always a chance for improvement. So this is objective, so it is a question and answer. You just click on it. Clear? So now come to the what should be your target, because they will give you the percentile. If I consider for the aptitude, at least you should target 180 marks. It is a reality. Out of 200 you can easily score 170, 180. Here why I'm saying, because 35 questions, if you it is like a driving. Like for example, you know how to drive the car. So if it is like a Swift, or it is like Desire, or if it is like Honda City, it hardly matters for you. It will take some time to understand it, like only 1 or 2 kilometers, but ultimately it is a skill. So if you know that plan, elevation, mirror, objective and all these things, so it is going to be very easy for you. So 140 out of 140 you can easily score 125, 130 something. And GK, like you have to understand that on that level we are working on the GK. Most of the question will come from this thing, and if it is not coming, then it is going to be difficult for all the students, not for you. So you can easily score at least 10 questions. So 10 multiplied by 2 or 4 is equal to 40. 40 here and 140 here, it is come to the 180. Easily you can score 180. For the mathematics, again in previous classes I always says that don't leave it alone. Like you have to come on that level at least 30 to 50 marks. It is the minimum number you should score. Right, so you have to work on the mathematics. It is very important. Second thing is like drawing. Drawing is sometimes there, it is like subjective, and it can be like, for example, you made this cloud. Maybe I can give 2 marks out of 10, and one person can give you 6 out of 10. It depends. So there is subjectivity, and we have seen that some students which are very good in drawing, they got only 30, 40 marks, 45 marks out of 100. And there are some students which I don't like there is nothing special in his drawing or her drawing, they got around 80 marks, like percentile. Clear? But again, there is nothing in my hand, nothing in our hand, so we should not focus on it. But at least your target should be that from the drawing section you should get at least 70 to 80 marks. So now you come to think, suppose you got 180 marks in the drawing or in the aptitude, and let's say 30, 50, 40 marks from here, and say 70 marks from here. So how much it is going to be there? 0, 8 for 12, 12 for 19, 290. 8 is the minimum. At least I am talking to you. And for the NITs, your target should be more than 300 SPAs and all these things. Clear? Although it depends on so many things. It is like you can score 200 out of 200, but again, I always consider that there are chances of human error, and there are chances. For example, you ask me any question regarding the GK. I consider my GK is quite okay. Like I consider that I study for the GK, but again, there can be some questions in the examination. Maybe that topic I did not understand. I did not read it. I did not able to recall it. So it is a possibilities. But again, on the practicality, 18 percentile is good in drawing. No, you have to work out a little bit more. It is an average marks. Clear? So now come to this thing. Usually I play this presentation in the very first class. So let's start from that point. I cannot add the students when I am having the presentation. देखो, आर्किटेक्चर के बारे में आप लोगों को पता है कि आर्किटेक्चर वर्ड आया कहाँ से. इट इज़ कमिंग फ्रॉम द आर्किटेक्टन, एंड दिस थिंग वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस इन द हिस्ट्री क्लासेस रिगार्डिंग द इंडियन हिस्ट्री और समथिंग. आर्किटेक्चर आप लोगों ने सुना होगा कि हमेशा बात की जाती है, यू आर गोइंग टू बी एन आर्किटेक्ट, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द आर्किटेक्चर, लाइक दिस. व्हाट डज आर्किटेक्चर मीन? Very simple. It is coming from the two Latin words, archi plus tecton. Archi means chief, or we call the main, or we can also call the royal. And tecton means the builder or carpenter. Carpenter is something like who is doing to something creative. So what actually usually happened during the Greek time period,
So there was a one person which was giving the authority to work on a separate thing. Like for example, you have to make a statue or something, or a one house. So the king usually called to one person, which was the responsibility was given to that person. So that person was called as, he is the chief, is the main person for the building something. So the word came from architecton. हिंदी में बोला जाता है शिल्पकार. ये भी वर्ड याद रख लेना कि आर्किटेक्ट कौन होते हैं. इट इज़ अ शिल्पकार. ठीक है. Then from the archi and tecton, the word came from the it's become the architecton, then architectus, then architect, and ultimately architect. Or now it is architecture or architect. ठीक है. So what is architecture? अगर हम बात करें आर्किटेक्ट तो पता चल गया, वो practicing the architecture, that's called the architect. Clear? But what is architecture? Suppose you visit great building on the world with your family and your parents will tell you the building has a great architecture. Of course, we have discussed about the form follows function. Usually a normal man, a layman, it's got inspired by seeing his form. It hardly matters for the function. Like suppose you are traveling to some location and you find a very beautiful building, and the beautiful building, you will only know that the shape or the form of the building. Clear? So often your parents would be referring to the elaborate facade or the great scale of the structure. Facade means the outer part, the shell of the body of the building, और द ग्रैंड स्केल ऑफ द स्ट्रक्चर. बोलते हैं ना यार कितनी अच्छी बिल्डिंग बनाई गई है, वाओ, उनको पता ही नहीं होता है. राइट. आर्किटेक्चर ऑन अदर हैंड इज द आर्ट ऑफ डिजाइनिंग स्पेसेस. चलिए कि आप जो स्पेसेस होते हैं कैसे निकालते हो. फॉर एग्जाम्पल हेयर यू कैन सी द माई बैकग्राउंड. सो इट इज़ लाइक हाउ आई क्रिएट दिस स्पेसेस. सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द आर्किटेक्चर. लाइक हेयर इट इज़ अ विंडो. सो like how I created the spaces, that's called the architecture. So the profession of designing building, open spaces, communities and other artificial construction and the environment, usually with some regard of the aesthetic effect. So everything you will see, it is the architecture. It is not a new profession. It was from the ancient time, from the Stone Age to the Indus Valley civilization, then Harappa, and then maybe Egyptian. There are so many civilizations. Then medieval time period, then modern India. Even you see today, we have the world largest statue in the world. It is not of the architecture, but how somehow it is like related to the architecture. How it is can be related? Because it has developed the tourism site, so the parking and all these things. A statue is not a part of the architecture, it is a part of sculpture, but overall thing is part of the architecture. We have the world biggest stadium. So again, so architecture is a continuous process. It depends on so many other things, like the information availability, the requirement. That time our Indian government, the requirement was to have a big world largest statue. So the requirement was different. Even today they cannot think about it. Now if they want to invest it, they are going to make a hospital. So now here you can see the requirement is change. So the requirement is very much important. Your budget is very important. Local materials are very important. Right? We cannot make the building out of the gold. Because why? Because gold is scarce resources. But it can be available when the money is there. For example, Golden Temple, they have created the shell, they have created the layer. So why? You cannot do this thing at your home. So the architecture depends on so many things. And okay, first of all, that what are the job potential for it? Like you completed your graduation, क्या क्या कर सकते हो आप. मेन चीज़ होती है ना, पैसे कितने मिलेंगे. Ultimately our target is like to secure our future. This show. So he or she can, if you complete your graduation, then you can join the architectural firm. Like I have worked in Goa and I have worked in Ahmedabad also, Jhansi also, Chandigarh also, Delhi also. I usually remain for any office for maximum 6 to 8 months. I think I never have in my office for more than 1 year. So you can also work as a country's private employees. You can also join in the government sector, like the various department of the state government. For example, PWD, Public Work Department, बहुत पुराना डिपार्टमेंट है. कब आया था ये? 1850s के आसपास. Dalhousie introduced it. So department, local authorities like city development authorities and corporation. You can also join the central government, like we have the federal system. Central government is at the center, and on the state it is a CM, and in the center is a prime minister. Clear? We are going to have some discussion regarding the government, like how our system works. CPWD, MES, railways,
of course they are having some architects in the railway sector, Nagar Nigam factories. You can also join academic institutions as a faculty member, like you can join any college and you can start teaching. Ultimately for this you need at least MR. He can start his own practice. For example, I am doing this thing. Of course, it is related for the education, but I also have some projects. So you can also start your own practice. You can also pursue your higher education. Like you again want to waste your money, not waste the investment. So depend करता है. And for the masters, you can also go for the foreign universities. अगर पैसे ज़्यादा है नहीं तो Indian universities हैं. All the masters need money. So then you can also work like estate values, interior designers. So architecture is is a tree, and there are so many different streams which you can join. For example, I am a photographer. So one time I also thought that I could become a good photographer. I should work for it, but I realized it there is no potential over it. I also do painting, sketching. So I once again also thought like if you complete your graduation in architecture, you will find so many different things. For example, here estate values, interior designers, urban designers, landscape architect. I also work in landscape firm in Ahmedabad. So he or she can also work as a project manager. You can also work for the multimedia, computer softwares and ITs. For example, ArcGenesis. Let's say ArcGenesis is our normal office and I want to expand it. And let's say we are going to expand it. कहाँ एक्सपेंड करना चाहते हैं? लेट्स से सानिया शर्मा के घर के आसपास. सो वी कैन आस्क कि सानिया को हायर कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं इन अम्बाला और समथिंग. आई थिंक सी इज़ फ्रॉम अम्बाला. सो सी कैन डिज़ाइन थिंग मे बी. सो मल्टीमीडिया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड IT. सो सेकेंड थिंग इज़ लाइक सपोज यू वांट टू मेक अ गेम के अंदर जैसे PUBG लोग चला था काफ़ी टाइम पहले, आप लोगों ने खेला होगा. सो देर इज़ अ नीड फॉर द आर्किटेक्ट ओवर देयर टू डिज़ाइन द बिल्डिंग्स. इन नॉर्मल बंदों को क्या पता है कि कहाँ से क्या करना है, द स्टेयरकेस कैसे जाएंगे, है ना. सो सब चीज़ होती है. मूवीज थिएटर के अंदर इट कैन बी यूज लाइक टू मेड दिस सेट्स एंड ऑल दिस थिंग. वी नीड आर्किटेक्ट्स. So there are big potential. There is nothing like that we are not having the potential, but the problem remains with the unskilled population, unskilled architects. If you are skilled, you can do anything. I tried so many things and I feel that okay, I am good in this thing, I am good in this thing, but what I like it is the education. So I switched towards for it. Sometimes I feel that I need to do sketching, so I work. Although I have not got time from the last 6 months, but again, so architecture is as per se is a very beautiful discipline. It's a beautiful course. But the main thing remains that if you are intelligent, if you are innovative and you want to do something, if you are having the ability to take risk, because if you complete graduation as an engineer, then it is quite clear that you are going to work on a decoding, coding and all this thing what they do. So a basic salary is there, but for the architect you will see some architect is working free of cost just to learn the knowledge. Like when I have my interviews, so there are so many not the architects, but they are from the diploma, they complete their diploma and they are saying, sir, we are ready to work at free of cost, but we want to learn from you. Clear? So it depends. And there are so many architects, of course they are charging like lakhs. So what matters is your skills. If you are interested, if you are having the ability to create something new, there is no predefined thing. There is that architect change very rapidly. There is always a chances for the innovation. Clear? So now salary expectations again. I thought that this is a topic. This time it is having the COVID situation, so it is not a normal condition. Or and of course, when you complete your graduation, it is going to be come back on the normal scenarios. But again, suppose one person is joining office 2021 and we are eliminating the COVID situation and all these things like a normal life. सब कुछ चल रही थी, हम लोग environment को पूरा खराब कर रहे थे. So it is like 20,000 to it is like a minimum. Of course, you will get the 20,000 rupees salary, and you can expect that in next to 4 to 5 years, it depends on your quality. You can reach to the 50,000 to 80,000 rupees. Clear? The amount of the investment in the sector seems to increasing with each passing day. Clear? Of course, but again, due to COVID-19 and specifically the NDA government, they introduce so many bills. Maybe they are good for the economy, but they are not good. They are not good for the real estate. For example, Benami Transaction Act. We all know that black money works in real estate sector. Again, demonetization. People don't have the liquidity. What is liquidity? It's taralta. Liquidity का मतलब होता है तरलता. Like how much money you are having in your hand. Right? Suppose I am having this iPhone. It is not a part of the liquidity. क्यों? क्योंकि इसको अगर बेचने जाऊँगा तो I will not get this money.
But if I have the money, so it can be easily exchanged. Gold is also considered as a liquidity. Gold, maybe sometimes silver, but again gold, like कहीं दुकान पर जाओगे, you will easily get the money. So there is a lack of the money in the economy. So this is the problem that the in real estate sector is facing the problem. And I will tell you other fact. Agriculture in India is providing the largest number. It's providing the job to the largest number of the people. Agriculture comes first, and second sector comes to construction, real estate, like labor and all these things. So if the real estate sector is having the problem, it is going to have the repercussions on the economy. This was a question was asked by a person. The person was from the SPA. There was an interview for the IIT Delhi. There was an interview, and I visit there for the applying for their architect post in IIT Delhi. Although I rejected, they rejected me. I have no idea. Kyun? So, but again, you can expect the 50,000 rupees to 80,000 rupees after 4 to 5 years later. Depends on your quality, right? The demand is expected to increase in the next couple of decades as India is going to expand FDI, foreign direct investment. FDI means like one person coming from the USA and he want to invest in India. So that's called the FDI in the real sector, and it will attract huge money from the foreign companies. But again, if you see the syllabus for the IIT, it is a mathematics. Mathematics is having the 25 questions, 20 plus 5 questions is having the number as numerical value. There is no negative marking. Make sure don't leave it unattempted, and it is going to be of the 100 marks. Clear? And for the aptitude, so 50 questions and multiply by 4, 100. And the drawing questions, 20 questions, 2 questions, 100. 77 questions, 400 marks. Clear? It is going to be your pattern. नाटा की बात करें, ये पैटर्न हुआ करता था इन 2021, व्हाट इज इट, नहीं इट इज़ लाइक 2019. इट वाज अ 2000 ड्राइंग टेस्ट. नो नेगेटिव मार्किंग मीन्स here you are going to have 25 questions. Out of 20 questions, out 25 questions, 20 questions will be objective, multiple choice questions. And for the 5 questions, it is going to be, you have to put the numerical values. In the numerical values, there is no negative marking. जैसा आपने करा था numerical value ऐड करनी होती है, उसमें negative marking नहीं होती है. देखो negative marking as per se is not a bad. I personally feel that negative marking gives the opportunity for me. अगर जहाँ पर it is like, I will tell you about my experience. If there is a question paper, there is no negative marking, मैं बहुत कम chances होते हैं कि उसको मैं पास हो जाऊँ. When there is a negative marking, बहुत कम chance होते हैं कि उसमें fail हो जाऊँ मैं. Because I know how to handle the negative marking. Negative marking can be a weapon for you, and it can be a disaster for the other student as well, because they don't understand the psychology of the negative marking. Negative marking क्यों होती है? Just to discourage you to taking the guesswork. But again, चलो leave it, अभी बाद में बात करेंगे. It was supposed to be your pattern, NATA, but this time they have changed everything, so it is the thing. नाउ कम टू दी नाटा. वेपन कैसे वो तरीका होता है, जैसे नेगेटिव मार्किंग होती है आपको. हाउ विल आई टेल यू हाउ टू एक्सप्लेन इट नेगेटिव मार्किंग. फॉर एग्जांपल, ओके, सपोज दिस इज ए, दिस इज लेट्स से सैली ने क्वेश्चन पूछा है, तो आई मेक एन एग्जांपल फॉर हर. इट इज अ सैली एंड इट इज अनुराग. सपोज वी अटेम्प्टेड 10 क्वेश्चंस हेयर एंड आई ऑल्सो अटेम्प्टेड 10 क्वेश्चंस हेयर. आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस वी अटेम्प्टेड 5 questions are right and 5 questions are wrong. But here I attempted 7 questions, and due to some elimination by the probability method, I am able to solve 2 more questions here and the 3 negative marking. So now this is a weapon against you, because 5 question 5 number -5, I am only getting -3. Ultimately what matters is like आप दोनों में से आगे निकलना है ना. तो ये भी तरीका होता है, बट अगेन इसको समझाने के लिए इट नीड अ वर्क लॉट मच प्रैक्टिस फॉर इट. बट अगेन अभी मैं बता रहा हूँ कि नेगेटिव मार्किंग एज पर से इज़ नॉट अ बैड थिंग. लोग डरते हैं, अपने दिमाग से डर निकालो. देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट ऑफ द नेगेटिव मार्किंग, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग इज गोइंग टू हिट एवरीवन. अगेन वी विल डिस्कस इन सम क्लास दैट हाउ टू डील विद द नेगेटिव मार्किंग. बट अगेन, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नाटा एंड द जेईई एग्जामिनेशन, विच इज़ मोर टफ एंड इम्पोर्टेंट. टफ कुछ नहीं होता है, और इम्पोर्टेंट डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गिव द ऑप्शन आइदर यू वांट टू गो टू SPA और CCA, यू विल से ऑफ कोर्स SPA, बट आई चूज CCA.
So it depends also for the important. What is your important? Because I got one person and their target is like कि सर हमें इसी city में रहना है. We want to complete graduation from this city only. So if you are offering that SPA Delhi, कोई मैटर नहीं करता. हर चीज़ आपको डिपेंड करती है कि क्या है, कौन सा इंपॉर्टेंट डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन एंड देयर पर्सनल चॉइसेस. So you can get the entrance in BR by the clearing NATA or the JEE examination, depends on you. Paper 2, or there are a few more entrance examination, depends like CEPT is also having their local, their separate examination. Clear? JEE means paper 2 can get you in the CCA. Of course, there is a like an issues regarding some people thought that it CCA is fill the seat from the NATA. No, information गलत दी हुई है वेबसाइट पर, गलत चीज़ें हैं. NIT, Trichy, Calicut, Bhopal, Nagpur, Raipur, and very others good in national level colleges. If you score well, of course, you should target for more than 300, and it is quite approachable. Second thing is NATA. NATA is by from the COA, and for the admission of 5-year program. NATA can get you various state level colleges. So one difference is here, JEE for the national level colleges, and here the state level colleges. NATA is exam for mainly colleges under Architecture Association, which are mainly private, and colleges under trust. So mostly from the NATA, mostly colleges are related to the private institutions. Clear? अगर हम बात करें कि why we need to do architecture, why, what's the special for the architecture? First of all, this is one of the very limited, it is one of the very uncommon subject which is having the art and plus technology. If you see that's called the humanities subject. One person is reading the history, so we call like normal बंदा है. If someone is completing the graduation as an engineer, technical बंदा है. In technical profession there is nothing related to the architecture, nothing related to the art or artist. आपने इंजीनियर देखे होंगे, है ना? You will feel sir is so boring, कुछ ऐसा नहीं आता है. अगर अपना आर्ट वाले बच्चे देखे होंगे जो आर्टिस्ट होते हैं, they will feel कि they are innovative but they are not technical at all. Architecture is the only profession I feel which is the culmination of the art and technology at the same time. So it is giving you the flexibility to think out of the box as your innovation or the art. At the same time you have to follow the basic principles. Like आप सलमान खान की तरह नहीं कर सकते हो कि कुछ भी चल रहा है. You have to follow the basic principles of the physics and the construction and other mathematics formulas. Clear? So it will give you the flexibility of thinking new, but at the same time you will consider as a technical person. It is a chances for the innovation and the creativity, of course. As such, not depend on the book. There is no book at all to complete it, like in your engineering college. अगर आप जाते हो engineering college के अंदर, क्या होगा आपके पास? They will give you set of the books like bulky books. आपका इतना weight नहीं होगा उतना आपको book पकड़ा देंगे. But in architecture ऐसा नहीं होता है. There is very small books like if you want to read about the, let's say, wood. If you want to study about the building material, wood as a building material, so you will search on the internet, you will search to you go to the library and you read on that part only. So there as such are not dedicatedly semester wise books, so it depends. Clear? It is a practical discipline. It is nothing happening in your mind, it is nothing happening in your computer system. It is like happening on the site, so you can see whatever you have made it can be there. आप मॉडल बना सकते हो, उसके सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको यूज़ कर सकते हो. It is going to be exposure of many subjects. For example, वहाँ की लोकल इकोनॉमी क्या है, इकोलॉजी क्या है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है, रिक्वायर्ड मटेरियल्स क्या हैं, बजट क्या है. देयर आर सो मैनी डिफरेंट थिंग्स होता है. फॉर एग्जाम्पल, चंडीगढ़ के अंदर यू कांट मेक अ न्यू बिल्डिंग्स. आप ऐसी बिल्डिंग्स नहीं बना सकते हो जो चंडीगढ़ की हायरार्की से लग जाती हो, है ना. यू कैन नॉट मेक अ डिफरेंट टाइप ऑफ बिल्डिंग्स. यू हैव टू फॉलो द बेसिक बायलॉज ओवर द चंडीगढ़. सो यू हैव टू रीड अबाउट द चंडीगढ़ बायलॉज. ऑफ कोर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच आई लाइक, इट इज़ द ट्रिप्स. There is not a single trip I have missed. Even I have more than, like every semester I usually write a letter to my principal. Sir, there is a problem regarding my submission, so I want to say it. We have to made a residential school, so we just wrote a letter to the principal, and they said okay. So visited to the Dehradun, and we usually choose those sites which is like having the good location. So trips is something which I really enjoyed. In the college, in architecture college, you will going to have so many trips like site visit, case studies, educational trips. Clear? It is going to give you the 6 months internship. It can be in the 7th semester or it can be in the 8th semester, depends. In my college it is a 7th semester. Normally what happened, if one college is having more than 100 students, so they divide some students that okay 50% student will going to have the internship in 7th semester, or other half will going to have the internship in the 8th semester.
7 और 8, हाँ ना, हाँ वही होगा। इंटर्नशिप यू कैन ऑल्सो डू, कहीं से भी कर लेना, like you can also do internship from the foreign countries, like I did internship from Netherlands, and Netherlands, even we were 3 from the Netherlands, like Ekta, Anurag, and Muskan. In Germany there are, I think, 4 to 5 people who are from the Germany, 2 people from the Switzerland. हाउ डू वी गेट इंटर्नशिप, ये कौन सा क्वेश्चन है सानिया? पहले तो आप जाकर कॉलेज का एडमिशन लो ना यार, है ना? यू शुड टेक्स्ट मी कि हाउ टू गेट एडमिशन इन द कॉलेज. इट इज़ लाइक, आई विल टेल यू, इट इज़ लाइक लॉन्ग स्टोरी, आपको पूरा का पूरा बता दूंगा मैं. आई विल मेक अ वीडियो फॉर इट. ऑफ कोर्स इंटर्नशिप के लिए क्या होता है, यू हैव टू कन्विंस टू योर बॉस कि वे आपको सिखाएं. Let's say for example you want to work with me, so you will send your portfolio, you will send your message, you will send me your work sample कि sir this is how I work and I want to do internship under your guidance. If I like you then I will say okay साने एक काम कीजिए, आप आ जाइए. The same thing for the international. I send them portfolio कि सर ये मेरा portfolio है and I want to work in your under your prestigious guidance, and they said okay आप आ सकते हो, but how will you manage like यहाँ पर survival. तो फिर वो अलग चीज़ आती है. दैन इफ़ दे आर ऑफरिंग दी इंटर्नशिप, दे आर ऑफरिंग सम स्टाइपेंड्स एंड ऑल दिस थिंग, आपको बता दूंगा मैं. कॉलेज लाइफ इज़ यूजुअली वेरी गुड इन आर्किटेक्चर कॉलेजेस, क्योंकि 5 साल होते हैं, ज़्यादा लोग नहीं होते हैं, एंड इट इज़ नथिंग रिलेटेड टू दी 8 आवर स्टडीज़. आर्किटेक्चर इज़ लाइक यू आर गोइंग टू वर्क फॉर द मोर देन 18 आवर्स, और कभी कभी तो 3-4 दिन हम लोग जागते रहते, 3-4 रातें जागते रहते थे. पर वो डिपेंड करता है. हम लोग इस तरह के लोग थे कि if they have given for more than 1 month, we will always work for the last night. So it depends, we cannot say about the architecture, but I got so many messages regarding that the workload is very high. I have no idea. In my college there was no workload at all. I really enjoy my life in my architecture colleges. There was nothing like, I have no idea कि बच्चे सच में ऐसे मैसेज करते हैं कि टाइम नहीं मिलता है. मैंने बोला यार सच में मैंने आर्किटेक्चर किया है या फिर ये कुछ और कर रहे हैं. बट अगेन डिपेंड्स करता है कॉलेज के ऊपर ही, वहाँ का माहौल क्या है और वहाँ का एम्बियंस क्या है. सो दैट्स वाई आई एम सेइंग कि ऑलवेज ट्राई टू गेट अ गुड कॉलेज. क्लियर? नाउ कम टू दी डिफरेंट पार्ट, है ना? सब कुछ तो अच्छा नहीं हो सकता है हर चीज़ के अंदर. सो देर आर समथिंग लाइक रिगार्डिंग द हार्ड वर्क. It is there because you have to make a drawing and you have to make a sketches. It is nothing like आपका drawing बहुत simple हो सकता है, it can be very complicated, and you choose to have the complicated design. What does it mean? You are going to have the complicated sections. You have to work on the detail. So it depends. Like architecture, if you are enjoying, then if you love this architecture profession, you can continue. But sometimes I feel that people lose the interest, that they are not good for the architect. For example, I will tell you, my college, when we are celebrating golden jubilee of my college, one architect came and he was saying कि मुझे तो पता ही नहीं था कि it is architecture होता क्या है. He thought that it is the agriculture. So he thought okay ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी से है, so we will take an agriculture. He thought कि ठीक है. And he was saying कि I was waiting कि मिट्टी का है, soil का है, फावड़ा का है. It is like कि equipment for the agriculture. And when the first year completed, and he thought चलो ठीक है आर्किटेक्चर कर लेते हैं. So ऐसे भी लोग होते हैं. But again, it is a very competitive profession every time. Like you will see architecture में पता है एक चीज़ मैंने realize होती है कि with Indian society don't give respect to the architects. I think maybe more less than 2% they thought that architect is need while they are designing the building. क्या करते हैं वे? If you visit to any person, there will be a contractor and he will say this is a site area, we can divide it, और वहाँ पर plan भी वहाँ पर बन जाता है, elevation भी वहाँ पर, they will fix it. So it is very much important that to create the awareness among the citizen society that architects are specialized. And for example, you are having the laptop, so you choose the best laptop, right? So laptop is like you are going to work for 3 to 4, 5 to 8 hours maximum. But where you are living, you are going to spend most of the time. So सर सब वही डिसाइड करेंगे तो हम क्या करेंगे? हाँ, दिस इज़ द रियलिटी. आई विल टेल यू दैट वन एक्सपीरियंस. देर वॉज अ पर्सन इन माई फैमिली, नॉट माई फैमिली बट समहाउ इट इज़ लाइक रिलेटेड टू मी, रिलेटेड टू माई फैमिली, एंड ही वॉज हैविंग द 10 लाख रुपीज़ बजट दैट ही वांट टू डू इंटीरियर्स. एंड आई सेड कि मुझसे इंटीरियर कराने के लिए एंड ही सेड टू मी कि उसका जो उनके जो लड़के थे, ही इज़ माई फ्रेंड, एंड इसे कि अनुराग कैन यू प्लीज़ डिज़ाइन इट. मैंने बोला येस ऑफ कोर्स. एंड इस फादर सेइंग कि नहीं हम लोग ऐसे फ्री में नहीं करा सकते हैं और हम कराएंगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी.
So the people in India have the mentality, if we are going to hire the architect, then it is going to increase our budget. Then I said, okay, do one thing. I'm not going to charge anything, but let me show you your budget and all this thing. What the contractor were charging for the 10 lakh rupees, I made it all this thing less than 8 lakh rupees. So depends. We have the issues regarding the Indian society. So competitiveness is very high. जस्ट अ सेकेंड, ये हमेशा इरिटेट करता है मुझे. द प्रॉब्लम इज़ कि दिल्ली में लॉकडाउन है, आई कैन नॉट चेंज माई वायर. सो ओके, सो इट इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव, इट इज़ वेरी डायनामिक, यू हैव टू अपग्रेड ऑल द टाइम. You cannot rely on the same softwares which you were working 10 years back. You have to see that what is coming in the market, right? Salary expectation थोड़ी कम रहती है, of course. 5-year course plus if you have dropper, so then it is going to be 6-year plan. Sorry. Private colleges, of course, all of the students cannot get the admission in the NITs and other government good colleges. Some students have to join the private colleges, and private colleges, they are working on the exploitative tendencies. The main target for the private college to earn the profit, right? Second thing is you have to spend on the material, model making and all this thing. If I tell you that I have so many pens which cost around more than 4,000 rupees. I have like the fantasy to having the station, collecting the stationaries and the coins and the different currencies coins. For example, I have this coin from the, it is made of the half anna, it is 1818 currencies. So model making you have to spend a lot. Stationaries come very expensive, not very expensive, but you can think like you have to get a printout on the chart paper or A1 sheet. It is so big size. Clear? So sometimes it can be expensive at all, and the trips and all these things you have to spend. So if you sum up about the architecture, so I made this thing. You can pause this video or you can take a screenshot. इसको पढ़ लेना बाद में आराम से, अभी टाइम नहीं है, अपने को पेपर भी डिस्कस करना है. सो कई सारी चीज़ें आती हैं, देखो आपको समझना पड़ेगा. मुझसे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि हम आर्किटेक्ट बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं. इट इज़ गुड to choose as architecture profession. More than 50% students they change their profession after completing their graduation. ऐसा भी एक फैक्ट है. तो आर्किटेक्चर कहीं ना कहीं अनसेटिस्फैक्ट्री है. इट विल टेक मच टाइम टू सेटल. सो दिस टाइप ऑफ द कॉम्पिटिशन विल बी इन आर्किटेक्चर फील्ड. कॉम्पिटिशन कैसा होगा? लाइक मैं भी आर्किटेक्चर फर्म है, यू आर ऑल्सो हैविंग द आर्किटेक्चर फर्म, तो कॉम्पिटिशन रहेगा ना. आप ऑफर करोगे 10 लाख रुपीज़ का, आई विल ऑफर 9 लाख रुपीज़. You will apply for your job and I will get 20 portfolios. So I will give the choice, I will give the job to the most reasonable and most intelligent person. So there is a competition. Clear? So competition is only for the mediocre students. Competition कभी भी expert लोगों के लिए होता ही नहीं है. Clear? सो देर आर सो मैनी थिंग्स. अगर आप चाहो तो मैं डिस्कस कर सकता हूँ. वॉट डू यू फील? लाइक मैं इसको समझाऊँ पूरा का पूरा और मैं इसको लीव कर सकता हूँ. वॉट डू यू फील? आई शुड कंटिन्यू विद द डिस्कशन? इट विल टेक 10 मिनट्स और आप उसे खुद पढ़कर समझ सकते हो. यस और नो? शुड आई कंटिन्यू? इसको डिस्कस करूँ या फिर आप खुद पढ़ लोगे? है ना? यस, वी विल रीड इट. योर राइट, आप इसको पढ़ सकते हैं, ज़्यादा कुछ हो नहीं है, लेकिन समझना ज़रूरी है. चलो, बट अगेन यू हैव टू लाइक सर्टेनली नोट मैनी गवर्नमेंट कॉलेज, अप्रूव्ड कॉलेज इन इंडिया teachers architecture, if you are eligible to able to get in college. So the question, the main thing is like okay, I will discuss about these critical issues. Some people think like the negative part is like, consider you this, you spend 5 years studying and unfortunately you come from a private colleges. अगर आपने 5 साल स्टडी करी है, प्राइवेट कॉलेज में आए हो, एंड आफ्टर पेइंग अराउंड 5 to 10 लाख रुपीज़, इट इज़ अ मिनिमम इन प्राइवेट कॉलेज, इट इज़ अ मिनिमम. योर स्टार्टिंग जॉब अपॉर्चुनिटी विल बी नॉट बी ग्रेट. सैलरी मे बी अराउंड 15,000 to 25,000 rupees per month. So the burden is less if you graduate from the government funded colleges. That's why I'm always saying that you should target from the government colleges. When you enter the government college, you save 10 lakh rupees on that particular day. समझ सकते हो. On the other hand, other course finished their studies in between 3 to 4 years. Like
marketing and all these things you can complete within 3 years, or engineering in 4 years, and got an average salary 25,000 rupees to 6,000 rupees. It is a reality. In the starting, there are some profession which will offer you handsome salaries in comparison of the architect. If we talk to work-life balance, most of the Indian architecture firms are blessed with the old British era attitude of the mediocrity. They assume you don't have a personal life. If they do realize it, they will make sure you have none. It's a reality. My friend, today is Sunday, so he's free. He usually go to the office in the morning and usually come in the night, like 10, 11. This is the reality. You have to work around. There are so many private firms. I think most of the private firms, they try to do exploit of their employees. Arc Genesis is having 3 employees, and we leave every person at 5 o'clock in the evening. कि it is your personal life, go there. कोई काम करने की जरूरत नहीं. Of course there is an emergency, then I will send out messages कि आप ये प्लीज़ ये काम कर दीजिए 2 मिनट का 5 मिनट का. But again we never do this thing कि 6 बजे 7 बजे. But in architecture एक कैसा बोला जाता है कि आने का तो पता है, जाने का नहीं पता होता. We know that when you are going to come, but we don't know that when you are going to leave the office. It is a reality. So थोड़ा सा attitude, but it depend करता है कि उसका जो वहाँ का बॉस है, वहाँ का जो वर्क कल्चर है, इट मोस्टली डिपेंड ऑन द वर्क कल्चर एंड द बॉस एंड द एम्बियंस, राइट. सो इफ यू टॉक अबाउट मी, सो एवरी प्रोफेशन कैन बी गुड और बैड, बट वॉट रियली मैटर्स इज योर इंटरेस्ट. कॉम्पिटिशन इज ओनली फॉर द मीडियोकर स्टूडेंट्स. देयर इज नो कॉम्पिटिशन फॉर द एक्सपर्ट. चलो ये सब हमें मटेरियल वगैरह आपको मिल जाएगा, वो तो हम बात कर लेंगे कैसा पढ़ना था. खैर छोड़ो इस चीज़ के लिए. सो दिस इज़ दी डिस्कशन रिगार्डिंग द जेईई एग्जामिनेशन. कुछ क्वेश्चन है अभी बिफोर आई स्टार्ट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. किसी के माइंड में कुछ भी आ रहा हो, कुछ भी लग रहा हो कि डिस्कस कर सकते हैं, सो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन. एनी क्वेश्चन टिल नाउ आर्किटेक्चर से रिलेटेड कि करना नहीं करना है, क्या होना चाहिए. यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ. Okay, no question. How to read the material, written material, like we have dispatched all the student till now what they have paid. सबको dispatch हो चुका है, and within 3 to 4 days you will going to read it. You will be get the material within 3 to 4 days, right? So कैसा आपको पढ़ना है, like whatever we are going to discuss. तो उसको डिस्कस करने के लिए मैं तो ये बताऊंगा कि फॉर एग्जांपल व्हेन वी आर गोइंग टू हैव द हिस्ट्री क्लासेस, सो आपको मटेरियल खोलना है और उसको आपको देखना है. इन सब चीज़ों के लिए यू हैव टू मार्केट. दिस इज द रीज़न. सर अब्रॉड में वगैरह जॉब करना हो तो मार्च करना पड़ेगा क्या? अच्छा, एमआर करना पड़ेगा. इट डिपेंड्स. देखो मुझे क्या लगता है, डिपेंड्स ऑन द लोकेशन. फॉर एग्जांपल यू वांट टू वर्क इन जर्मनी, सो जर्मन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज. जर्मन सीखनी पड़ेगी आपको समझने के लिए, तो वहाँ पर जर्मन बहुत मैटर कर जाती है. जॉब के लिए मैंने कभी ट्राई नहीं किया. आई नेवर थॉट अबाउट टू वर्क इन अ फॉरेन कंट्रीज. आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन दैट आई बिलीव दैट बेसिक फंडामेंटल राइट हैज़ टू बी देयर. मैं मनी से कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा, बट लाइक आई वांट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट. आई वांट टू हैव द से इन माई गवर्नमेंट पॉलिसीज. लाइक आई वांट टू हैव द वोटिंग राइट्स, कि वहाँ पर मुझे कोई पकड़ नहीं सकता है. पुलिस कैन नॉट से एनीथिंग टू मी. So what matters for me, like I want to work in my country. I belong to this land, and there are so many features. Like suppose I am not criticizing any one person, but you see the person coming from the Nepal to India, he is getting good money in comparison to Nepal. But what the value he got, we all know. So the same thing, we work in other country. Of course, we are getting money we are getting handsome money in comparison of the our fellow citizens. But what the respect we got in the foreign countries is nothing. We have on the words of their decisions. Like visa expire हो गया है, they could not extend the visa. आज government change हो गई है, Trump change हो के बाद Joe Biden आ गए. So I don't want to take this kind of the shit. It is like I always say that never be on the receiving end in your life. जब भी रहोगे, it is a symptom of your weakness. जो कुछ भी होगा, कभी भी अपने आप को देखो मैं बताता हूँ पर्सनल लाइफ के बारे में. देर आर वेरी फ्यू कोट्स जिनको मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ, लाइक मोटिवेशन स्टोरीज मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ. आई गिव 1 आवर डेली का, जहाँ पर मैं बुक्स पढ़ता हूँ, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देखता हूँ विच मोटिवेट्स मी. एंड देर इज़ अ वेरी लाइक जो मेरी लाइफ में जो मुझे मोटिवेट करता है, इट्स अ लाइक आपको बताता हूँ, हिंदी में है वो. आपने एक चिड़िया देखी है, लाइक यू हैव सीन अ बर्ड. उसको कभी भी द बर्ड डोंट थिंक अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रांच, है ना. उसको कहीं भी जाकर बैठ जाती है. लाइक इसमें पैरेट, सो वो कहीं मेरे कंधे बैठ जाएगा, कहीं
पत्ते पर बैठ जाएगा, एक लीफ पर बैठ जाएगा, उसको डर नहीं लगता है कि वो कहीं शाखा पर बैठा हुआ है, कहीं टूट के तो नहीं गिर जाएगी वो। पता है उसको डर क्यों नहीं लगता है? क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस उसके विंग्स में, उसके पंखों में। ही और सी इज हैविंग द कॉन्फिडेंस इन हिज विंग। इफ समवन इज नॉट गोइंग टू सपोर्ट द, सपोज कि जो वायर है या जो द ब्रांच ऑफ द ट्री इज नॉट हैविंग द कैपेसिटी टू टेक द लोड ऑफ दैट द बर्ड, सो नेवर बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन। रामचरितमानस का एक बड़ा प्यारी सी लाइन है, पराधीन स्वप्न सुख नहीं। अगर आप किसी पर डिपेंडेंट हो, यू कैन नॉट थिंक अबाउट, आप यू कैन नॉट थिंक अबाउट इन ड्रीम्स टू बी हैप्पी। रियलिटी छोड़ दो, सपने में भी नहीं सोच सकते हो। सो दिस इज अ रियलिटी दैट आई ऑलवेज वर्क ऑन माई, आई नेवर बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन। इफ माई ऑफिस इज देयर, इफ दे आर नॉट गोइंग टू वर्क, आई हैव द कैपेसिटी, देन आई कैन वर्क, आई कैन रन माई ऑफिस अलोन। सो खैर एनीवेज, बी आर्क में गवर्नमेंट जॉब मिलता है। बी आर्क में येस यू विल गेट गुड गवर्नमेंट, और बी आर्क में थोड़ा कम है, बट बी प्लानिंग इज हैविंग मोर गवर्नमेंट जॉब। बी आर्क के लिए कुछ एग्जाम्स होते हैं, लाइक DDA जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वहाँ पर कुछ सीट्स आती हैं, एंड लाइक PWD मोस्टली दे प्रीफर। चंडीगढ़ में एक दो वैकेंसीज निकलती हैं, ज़्यादा नहीं है, इट इज़ लाइक वेरी फ्यू। वाई आर नॉट स्टार्टिंग योर ओन आर्किटेक्चर फर्म? It is a like I love architecture, but there are some issues regarding this thing. I don't want to take so much tension in this architecture. Architecture के अंदर payment बाद में मिलती है, and I don't believe in like so. In you see, you have all the students have given me in advance, so I prefer that architecture India के अंदर culture wise इतना सही नहीं लगता है मुझे. It is not, I am not that kind of person कि जो मैं 12 घंटे काम कर सकता हूँ. I can work I can maintain the quality of the 12 hours, but I cannot justify my time just on the basis of the arts. So maybe in future, of course, my father is civil engineer. I will definitely open. But again, I thought that I enjoy the education. So due to COVID-19, not change drawing section online. Art JE also saying no. JE, this is the JE is very responsible. It is very easy this time. Preparation for JE is quite easy. So ठीक है. प्लेसमेंट फॉर प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्लेसमेंट नहीं होती है, देर इज नो प्लेसमेंट, देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ द प्लेसमेंट इन आर्किटेक्चर कॉलेजेस लाइक MBBS. यू डोंट फाइंड एनी प्लेसमेंट सिस्टम. प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज़ फॉर द लाइक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एंड ऑल दिस. सर ये सब पेमेंट इज अ बिग प्रॉब्लम, माई फादर फेस सो सेम प्रॉब्लम. आई नो दैट आई टॉक दिस इज द प्रॉब्लम. आई विल टेल यू अबाउट द स्टार्टअप्स. स्टार्टअप्स हमेशा चल जाते हैं. देर इज ऑलवेज अ टू प्रॉब्लम faced by the startups. Either the team crunch, team is not supporting to you, team is not skilled, team is not having the capacity, or they have their wrong mentality. Second thing which is the disaster for the startup, to the money issues. There are chances कि payment तो positive में आ रही है, like we will see the Excel sheet, you will see कि positive में है, but in reality you don't have the money. ठीक है, तो आर्किटेक्चर के अंदर यही प्रॉब्लम होती है. आर्किटेक्चर में सपोज मैंने आपको हायर किया, लेट से सानिया को, मैंने सानिया को पापा को पता है, सो ये अजैन को हम बात करते हैं. फॉर एग्जांपल अजैन इज़ एन आर्किटेक्ट एंड आई हायर हिम कि मुझे इस रूम को इंटीरियर डिज़ाइन करना है. अब इसके अंदर देर विल बी, हाउ कैन यू जस्टिफाई दिस द परफेक्ट डिज़ाइन? लाइक आई ऑलवेज से कि नहीं यार ये टेक्सचर गलत है, यू प्लीज चेंज द टेक्सचर, और आई कैन से दिस द विंडो कुछ कमी है, कैन, ये सब चीज़ें, इट इज़ ए वेरी फ्रस्ट्रेटेड फॉर द आर्किटेक्ट कि यार जब बात हो चुकी है, यू सेड दैट दिस थिंग, मतलब आपकी जो फैंटेसी है, आई कैन नॉट मीट दैट फैंटेसी, और आई कैन नॉट मीट योर एक्सपेक्टेशंस. ऑफ कोर्स व्हाट वी हैव डिसाइडेड, लाइक ओके वी आर गोइंग टू मेक दिस बिल्डिंग, दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस, आई कंप्लीटेड इट. सो दिस इज द टाइम पीरियड दैट द क्लाइंट विल नॉट विल लीव द मनी, they will always have the problem कि नहीं करा. So I never find a client which is very much satisfied with the architect, even the architect is very fine. So this is the problem, I understand. कुछ कॉलेजेस ऑफर करता है प्लेसमेंट, बट दिस प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? प्लेसमेंट इज फॉर द मीडियोकर स्टूडेंट्स, कि वहाँ से कर दिया, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी. सो इट इज लाइक वी आर मीडियोकर एंड वी डोंट, सपोज इफ लाइक कि अगर आर्कजेनेसिस नहीं भी मैं काम करता हूँ, मेरा पोर्टफोलियो 4 साल पहले अपडेट किया था, आई डोंट अपडेट माई पोर्टफोलियो. इवन दिस टाइम आई फील कि मुझे कहीं भी जाना होगा, आई विल गो देयर, आई विल हैव अ मीटिंग, एंड ऑफ कोर्स आई विल एबल टू कन्विंस देम कि मुझे हायर करने की ज़रूरत है. सो I don't consider कि if you are skilled, if you have the competitive mind, if you are very innovative, you have the capacity, तो आपको प्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं है. अच्छे लोगों की वैल्यू कहाँ पर कम है? लाइक इफ़ यू आर वेरी गुड इन वर्किंग, सो आई विल डेफिनेटली टेल यू कि आप ठीक है, आप 25,000 मत लो, 30,000 ले लो, बट यू शुड वर्क विद मी, है ना. तो what you which one should prefer, job or firm? Of course firm, but without job you can't have the firm.
In your college, it is all theoretical. You have to have the experience of the practicality, and it will come with when you are working in a job, working as a employee in an architectural firm. सो ओपन नहीं कर सकते हो आप, क्लाइंट कहाँ से लेकर आओगे? इफ़ आई ओपन इट लाइक आर्क जेनेसिस प्राइवेट लिमिटेड, तो मेरे उस क्लाइंट कहाँ से आएंगे? दे विल चेक मी कि कितनी नॉलेज है आपको. सपोज यू पेड फॉर मी आर्क जेनेसिस लास्ट ईयर, इफ मैं आपसे बात करता, यू डू नॉट पे. Why should you pay? That you have not seen the quality. Then you check the YouTube channel, you see the quality, then you will prefer it, right? So you cannot have the office and without having without having the knowledge of the contacts, like the practical knowledge, the building material, how the system works, है ना. तो उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है. आर्किटेक्चर इज डिफरेंट. सो earlier think that architect is charging too much. Yes, they thought yes कि ऐसा होता है. व्हाट वन शुड प्रिपेयर ऑफ. सर ये बी प्लानिंग के बारे में बताएं ना. बी प्लानिंग के लिए देखो नॉर्मली क्या होता है, बी प्लानिंग इज रिलेटेड टू द प्लानिंग. फॉर एग्जांपल, normally B planning is having more government service jobs in comparison of the BR. For example, there is a X city. This is, suppose I will share you. Suppose this is a Delhi. Population is increasing. For example, we are having the urbanization. Suppose the Delhi government want to make some sector here. So that time it need planners. मेन रोड कैसे जाएगी, सेक्टर विल डिवाइडेड, हाउ मच द स्पेस विल बी. सो दिस इज द प्लानिंग, द प्लॉट एंड ऑल दिस थिंग. सो इट इज़ अ वर्क ऑफ द गवर्नमेंट. दिस इज द रीजन दैट बी प्लानिंग पीपल इज मोर रिक्वायर्ड इन द गवर्नमेंट सेक्टर. सो बी प्लानिंग के लिए ये होता है. बट अगेन इफ़ यू कंपेयर दैट बी प्लानिंग बी आर्किटेक्चर, यूजुअली पीपल फर्स्ट गिव द प्रेफरेंस टू द आर्किटेक्चर. क्योंकि बी प्लानिंग के लिए आपको प्लानिंग आती है. कितने ऑप्शंस हैं इंडिया में? हाउ मेनी ऑप्शंस यू विल गेट आफ्टर कंप्लीटिंग द बी प्लानिंग. आर्किटेक्चर के अंदर ये होता है, चलो ठीक है, आई कैन वर्क, कुछ पैसे मिल जाएंगे मुझे. फॉर द आर्किटेक्चर देयर आर मोर ऑप्शंस, ज़्यादा लोग काम करेंगे. बी प्लानिंग के लिए इट इज़ ऑलवेज द गवर्नमेंट. इट इज़, आप थोड़ा ना बोलोगे कि ओके आई वांट टू हैव द टाउनशिप इज़ बाय द गवर्नमेंट और द वेरी बिग बिल्डर्स. सो ठीक है. सो नाउ अब कोई क्वेश्चन नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया. वी हैव डिस्कस ऑन द प्रीवियस क्वेश्चन पेपर. अब चीज़ समझ में आई आपको? सर कैन वी एडवर्टीजमेंट फॉर योर फॉर्म? येस ऑफ कोर्स कर सकते हो आप. लेकिन एडवर्टीजमेंट करने का फ़ायदा क्या होगा? एडवर्टीजमेंट दे विल गिव यू द क्लाइंट्स दे विल गिव यू द वन टाइम क्लाइंट्स. अगर हमें क्वालिटी नहीं होगी तो इट इज़ नॉट गोइंग टू द लास्ट. एंड द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क इन आर्किटेक्चर टू गेट द मनी फ्रॉम द क्लाइंट. कभी आपको पैसे नहीं मिलेंगे जल्दी से. सो यू हैव टू वेरी कॉम्पिटिटिव, यू हैव टू वेरी कन्विंसिंग. कुछ लोगों की कन्विंसिंग पावर बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, कुछ लोगों की नहीं होती है. सो इफ़ यू आर नॉट हैविंग द गुड कन्विंसिंग पावर, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स रिगार्डिंग कि आप कैसे समझा रहे हो, तो नहीं होगा. बट अगेन इट इज़ लाइक ये कोई इट इज़ नॉट अ इनेट इंफॉर्मेशन और इट इज़ नॉट अ इनेट स्किल्स. इट कैन बी अचीव. थोड़ी सी मेहनत करोगे आपको आ जाएगी. दिस भी मिल जाता है, इसमें कुछ वैसे डरने वाली बात नहीं है. ठीक है, इसको बात करेंगे. नाउ देयर इज नो मोर क्वेश्चंस. नाउ कम टू दिस पार्ट एप्टीट्यूड. वी हैव डिस्कस सम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर. देखो पेपर जो आएगा मैथमेटिक्स पार्ट 1 आएगा. पार्ट 1 इज हैविंग द मैथ्स. उसके बारे में आपको खुद मैनेज करना होगा. वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस एनीथिंग रिगार्डिंग हियर. पार्ट 2 इज रिलेटेड फॉर द एप्टीट्यूड. इसको हम वर्कआउट करना पड़ेगा. हियर यू सी द एलिवेशन एंड समथिंग, प्लान एलिवेशन, आपको ये सब बताने होंगे. ये हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. वी हैव कवर्ड ऑल दिस थिंग इन प्रीवियस वीडियोज़. तो जो न्यू स्टूडेंट्स है और सब देख लेंगे. दिस इज़ द रीज़न वाई वी आर गिविंग द रेगुलर असाइनमेंट टू यू, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मिरर एंड ऑल दिस थिंग. ठीक है, कुछ आपको पूछ लेंगे यहाँ पर. एंड व्हाट वी आर डूइंग रेगुलर ऑन द जीके एंड ऑल दिस थिंग. इस क्वेश्चन के लिए 15 क्वेश्चंस. ठीक है, चलो अब देखते हैं. सब लोग अपने तैयार हो जाओ. अपने आपको अटैम्प्ट करना है. ठीक है, ये तो आप कर लेंगे. पहला दूसरा क्वेश्चन है लाइक एलिवेशन. लेट्स चेक इट. ये भी कर लेंगे आप, इसको भी. चलो इसको देखते हैं ना, इस तरह क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 35, ए, बी और सी और डी. क्या बताना है आपको? दिस इज द प्लान. प्लान क्या होता है बता दिया, टॉप व्यू. और आप किस डायरेक्शन देख रहे हो तो बताओ. Sally, Harsh, Neha. Take your time, देर इज नो हरी.
अरे लिख तो रखा है यार, सॉल्यूशन है तो करेक्ट सॉल्यूशन। इसमें क्या देखना, ऑप्शन इज करेक्ट, बट अगेन चलो बता देता हूँ। देखो इसका करने का तरीका क्या है, यू फर्स्ट चेक इट, 1 2 3 4 5, इसका मतलब क्या है कि 5 फेसेस हैज़ टू बी देयर। 1 2 3 4 5 ये हो गया। 1 2 3 4 5 6 एलिमिनेट कर दो, देखना ही नहीं है, जस्ट एलिमिनेट। 1 2 3 4 5 6 एलिमिनेट। 1 2 3 4 5 6 एलिमिनेट। चेक ही नहीं करना है, वेरी सिंपल, इससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने ऐसा कैसे हो सकता है कि ओके मैंने यहाँ पर क्वेश्चन ये वाले हटा कर रखे हुए हैं, लेट्स सी। Just give me a second. I did not hide these options, right? There must be some PDF जहाँ पर मैंने क्या होगा। मैथ्स क्वेश्चन फॉर व्हाट, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। चलो मैं इसको बात करो, शेयर कर दूँ, कोई बात नहीं। हाँ चलो नाउ, ये तो हम लोग कर चुके थे ना, मुझे याद था देखो मैंने कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि। ठीक है, आज आपका एक टेस्ट और है, सरप्राइज टेस्ट है, जिसके अंदर आपको आज या फिर आज संडे है ना, लेट्स से कि अगर ऑफिस में मैसेज आ गया होगा मुझे, देन आपका एक सरप्राइज टेस्ट भी होगा, जहाँ तक है लाइक आइसोमेट्रिक, आपको बताना है कि व्यू देख के। अच्छा एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 35 को 37 करो, मैं आता हूँ अभी 1 मिनट में। जस्ट क्वेश्चन नंबर 37। भैया एक सेकंड रुकना जरा, मैं लोगों को देखता हूँ। यस, सो 37 का ऑप्शन क्या है? आई थिंक सब लोगों को बी लग रहा है। अदनान, जसप्रीत, सोहम, कबीर, हर्षदा, निवेदा, अक्षय, उदय, मानसी, सब लोग सबको बी है ना? हाँ बी, ठीक है। सब मेरे पास JEE 2021 की PDF है। हाँ मेरे पास भी है, कोई बात नहीं, शेयर कर दो ग्रुप में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई चीज़ अगर अच्छी चीज़ मिलती है तो आप प्लीज़ शेयर करो। हाँ लेकिन एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, इट इज़ लाइक कि हमारे जो ग्रुप के अंदर है, देर इज़ नो अदर पर्सन, लाइक ऑथेंटिसिटी कुछ ऐसा नहीं है। जो कुछ भी शेयर करता हूँ, जो मैं शेयर करता हूँ, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है कि वो सही है। जो बाकी लोग शेयर कर रहे हैं, आई हैव नो आइडिया कि वो जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं
या फिर वो कुछ अगर लिंक शेयर करते हैं आपके पास, तो वो काम उसको प्लीज़ चेक करना कि आई एम नॉट सेइंग और आर्कजेनेसिस इज नॉट सजेस्टिंग एनीथिंग, ठीक है। बाकी आपकी खुद की विजडम है, अगर आपको लगता है तो आप कर सकते हो, कुछ और नहीं। 38 के अंदर देखें, इट इज़ वेरी सिंपल, है ना। तो इट इज़ लाइक सी क्यों होगा, देखो अगर आप इस डायरेक्शन में देखते हो तो आपको ये वाला पूरा का पूरा पार्ट यहाँ पर आ जाएगा, फिर यू विल सी दिस फेस, ये वाला यहाँ पर, और आपको ये वाला पार्ट निकला। इतने सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, लाइक इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। अगला पेपर भी डिस्कस कर लेंगे एक दो एक्स्ट्रा क्लास में लेके, ठीक है। देखो अब एलिमिनेट करने का क्या तरीका है कि ये पूरा का पूरा फेस अपने को दिखाई देगा, ये गलत आ गया तो एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन नंबर बी विल एलिमिनेटेड। नाउ कम टू द ए सी एंड डी। तो इसमें देखो यहाँ पर ये छोटा पार्ट बना हुआ है ना, तो सबके अंदर है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर है, बट अगर ये लाइन क्यों आ रही है, हाँ देखना पड़ेगा मुझे इसे, तो यहाँ पर ये गलत है, तो दिस कैन बी एलिमिनेटेड। जब आपके पास दो ऑप्शन बच जाएं, लाइक यू हैव ओनली 2 ऑप्शंस लेफ्ट, सो नाउ यू चेक इट कि डिफरेंस कहाँ पर है। यहाँ पर सिर्फ इतना फ़र्क है, लाइक ये बॉक्स है और यहाँ पर ये लाइन नहीं है, यहाँ पर कोई लेफ्ट डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब दिस विल बी एलिमिनेटेड, ठीक है। सो और कौन सा क्वेश्चन देखें, चलो जल्दी करके देखते हैं। 39 वेरी इजी। सेली, सानिया, पूजा, रियरा, गुड, मानशी, शीतल, जसप्रीत, नंदिनी, याग्निक, नेहा। इजी है, सिंपल, करना ही कुछ नहीं है अपने को। लाइक इट इज़ दिस पार्ट इज है एंड दिस पार्ट, और ये वाला पार्ट यहाँ पर आ गया। यहाँ पर देखो लाइन है, यहाँ पर तो पूरी की पूरी बॉक्स है, यहाँ तो सीधा है, तो लाइन है, इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, ये वाला पार्ट एलिमिनेट हो जाएगा। सो बी कॉन्फिडेंट, इट इज़ वेरी इजी। मैं तभी बता रहा हूँ आपको डरने की जरूरत नहीं है। जेई के अंदर थोड़ी सी मेहनत करोगे, 1 मंथ इज़ मोर देन इनफ टू क्रैक दिस जेई, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पर बोला गया है फ्रॉम दिस डायरेक्शन। सो क्वेश्चन 40 का हरिहरा, कृष्णा, यस कम ऑन जल्दी, परमिंदर, सयाली, मानसी, नेहा, याग्निक, क्लियर। सो सी कैसे हुआ है, सारे ऑप्शन गलत हैं, ऑल द ऑप्शंस आर रॉन्ग। परफेक्ट है ना, ऑल दी ऑप्शंस आर रॉन्ग। देखो इसलिए तो मैंने बोला है कि क्वेश्चन की गलती। आप ये देखो गलती सी कैसे बोल सकते हो, हाउ कैन यू से सी, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत सिंपल सा एल सेक्शन इज देयर, यहाँ पर पूरा का पूरा एल बनेगा, है ना, तो इट इज़ लाइक एल, तो ये लाइन ही सब में लाइन गलत आई हुई है ना, तो ऑल दी ऑप्शंस आर रॉन्ग, गुड, है ना। सो 40 का ऑप्शन गलत है ना, सारे ऑप्शन, तो कोई बात नहीं, ह्यूमन एरर होता है, प्रिंटिंग में एरर हो जाता है कभी कभी, इसमें कुछ नहीं है, बट यू शुड बी एबल टू थिंक अबाउट इट। 41 ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 41। सयाली, मानसी, राधा, हर्ष, उदय, अदनान, याग्निक, नेहा, सज्जन, शनि, कृष्णा। कृष्णा बट फ्रॉम द अदर साइड, ओके इसका देखते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि आपको इस डायरेक्शन में देखना है ना, यहाँ पर मार्क क्या हुआ है, तो इसके लिए बी गलत होगा। हाँ अगर आप इस तरह से करेंगे, इस तरह से भी क्यों होगा सही, फिर सी हो सकता है, फिर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर मार्क गलत दिया हुआ है जो भी है, बट यू हैव टू चेक इट ना, वहाँ पर लिखा होगा कि मार्क के साइड में। गुड, चलो यहाँ पर हो गया, कुछ नया क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यहाँ पर इस तरह से एलिवेशन आते हैं, इट इज़ नॉट दैट मच डिफिकल्ट, ठीक है, आपका बिल्कुल सही है। तो लेट्स डू इट। क्वेश्चन नंबर, so that view of an object, आपको टॉप व्यू बताना है इसका। टॉप व्यू मीन्स ऊपर से देख रहे हो, सयाली, राधा, हर्ष, नेहा, हरी, शीतल, उदय, सानिया, ठीक है, नंदिनी। आई थिंक इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड फॉर यू। यहाँ पर देखते हैं, ये वाला पार्ट यहाँ पर है, और जो ये एल वाला पार्ट है यहाँ पर आया, ये यहाँ पर, और ये वाला पार्ट है। कहाँ दिक्कत आ रही है, क्यों कहते हैं कि 200 में से 200 नहीं स्कोर किए जा सकते हैं,
किए जा सकते हैं ना, बहुत ईजी है। चलो और क्वेश्चन देखते हैं। सर टॉप व्यू के साइड में आइडेंटिफाई करने वाले क्वेश्चन में आई फेस डिफिकल्टी। सर इन टॉप व्यू से साइड व्यू आइडेंटिफाई करने के लिए कोई बात नहीं, वो आ जाएगा, सबको आपको समझना पड़ेगा। अभी देखते हैं क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आप ये तो टॉप व्यू देख सकते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं। नाउ कम टू द मिरर क्वेश्चन। 51 कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, यू हैव टू वर्क अ लॉट, बस और प्रैक्टिस करोगे सब कुछ हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान से। दैट्स वाई द फंडामेंटल्स आर शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। जसप्रीत 1A, संकल्प B, नंदिनी D, याग्निक A। चेक करो इसका मतलब कौन, काफ़ी बच्चे अलग अलग बोल रहे हैं। 51 none I see, none, how can you say none? Yes, wrong answers, all the wrong, all questions are wrong। देखो है ना कितना जल्दी है समझने के लिए। नो आंसर, गुड हरी, सानिया, सयाली, हर्ष, नेहा, सयाली, मानसी, अदनान, जसप्रीत। अच्छी बात, देखो आप लोगों ने एकदम से समझा। सारे गलत हैं, है ना, सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं। कौन सी बुक है पता नहीं, खैर ये अरिहंत है शायद। तो मैंने वो बताया ना कि बच्चों को सही गाइडेंस नहीं हो पाती है, बच्चे बेचारे लगे रहेंगे इसमें। सोच कर देखो, इफ़ यू आर एबल टू फाइंड विच दी ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग, कितनी अच्छी प्रैक्टिस है आपकी। इसलिए बी कॉन्फिडेंट, इस चीज़ में इतना डरने वाली बात नहीं होती है कि जेई में नंबर कम आएंगे ही आएंगे। यू हैव टू वर्क, अगर अपन मेहनत की होगी तो आपके नंबर आ जाएंगे, ठीक है। चलो 52 करके देखो फिर। All, I think everyone is saying option B. Yes, ठीक है। अमित, मानसी, सोहम, याग्निक, जानवी, उदय, जसप्रीत, योगनिक, शीतल, विशु, श्रेयस, राधा, निवेदा, बीस है ना। बी इज, देर इज नथिंग टू लाइक एक्सप्लेन, बी इज राइट। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। 53, डू क्वेश्चन नंबर 53। राधा डी। देखो सबसे पहले तो आप ये चीज़ चेक कर लो कि ये जो लाइन है बीच में से, कोई भी चीज़ इन द मिरर देर विल बी नो, नथिंग न्यू विल ऐड और विल नॉट बी एलिमिनेट एनीथिंग, तो बिल्कुल सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये लाइन कटी हुई है तो यू चेक इट कि लाइन कटी हुई तो नहीं है, तो यहाँ से इसको एलिमिनेट करो, सीधा पार्ट करो एलिमिनेशन पर। एलिमिनेट करते चले जाओगे तो सही ऑप्शन बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये लाइन मिसिंग है, यहाँ पर ये लाइन मिसिंग है, यहाँ पर आई थिंक ये वाला लाइन मिसिंग होगी, नहीं यहाँ पर कुछ, हाँ इट इज़ बी। राधा आपने कुछ क्या ऑप्शन क्या दिया था? आपने डी दिया था ना, बी इज़ द राइट। हाँ कोई बात नहीं, जल्दबाजी नहीं करनी अपने आप को, कॉन्फिडेंट फ्लाई रहे यहाँ पर, आराम से करो, टेक योर टाइम। एवरी वन इज हैविंग अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग, टाइम, टेक योर टाइम। 54, सानिया, अमित, नेहा, राधा, मानसी, सज्जन, अदनान, अमित, विदुषी, विशु, शीतल, तमोगना, सयाली, हर्ष, हरी, है ना, सबका सही है बिल्कुल। पर याग्निक, अंजलि, हम, निवेदा, यस परफेक्ट, सबका बी है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर किसी को कहीं प्रॉब्लम आती है प्लीज़ लेट मी नो, आई विल डिस्कस इट। इस तरह की फिर आते हैं ऑड वन फिगर, ये आप निकाल लेंगे, इसमें कुछ वो नहीं है कि बीच में से कटा हुआ है, साइड में कटा हुआ है। तो ऑड वन का मतलब होता है कि आपको चारों चीज़ ऑब्जर्व करनी है और सबसे अलग से दिखाई दे, उसको आप निकाल दो, ठीक है। तो यहाँ पर भी हिडन फिगर्स वाले आते हैं, आपको असाइनमेंट मिला होगा तो आप लोगों ने ये देख लिया होगा इसके अंदर। चलो लेट्स डू वन क्वेश्चन हिडन फिगर, थोड़ा सा आज देखते हैं प्रैक्टिस हमारी कितनी सही चल रही है। 62,
नेहा मानसी, डी कैसे होगा? देखो ध्यान से, डी इज़ नॉट द राइट ऑप्शन, सी इज़ द राइट ऑप्शन। देखो चेक करना है आपको, दैट्स कॉल्ड द प्रोपोर्शन, यहाँ पर सी है। लेट्स सी, जो ये वाला भाई साहब कहाँ पर है, ये जो पार्ट है शायद यहाँ पर ये बनाया गया है, लगभग ऐसा मान सकते हैं। कुछ और भी दिख रहा है क्या यहाँ पर? ये वाला, यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि ये यहाँ पर है, ये वाला पार्ट है, ये है, ये है। तो यहाँ पर देखो ये पार्ट बड़ा है, ये छोटा है, इट इज़ क्वाइट बिग, तो इसको हम लिमिट कर सकते हैं इजीली। दिस कांट बी द राइट ऑप्शन। ये वाला पार्ट यहाँ पर आया, बट अगेन यहाँ पर देखो ये लगभग बराबर है, बट हेयर सी ये छोटा हो गया, इतना बड़ा हो गया, मतलब प्रोपोर्शन सही नहीं है, तो इसको भी लिमिट कर सकते हैं। जो डी है वो ये वाला पार्ट है आपका, ठीक है, ये वाला पार्ट आया, बट अगेन यहाँ पर क्या है, लगभग 90 डिग्री है, लगभग यहाँ पर क्या है, अराउंड 60 के आसपास है, 75 के आसपास, तो यहाँ पर सही नहीं है। सो राइट ऑप्शन विल बी द C1। ठीक है, ये कहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है, समझ में आया कहाँ पर। चलो इसमें गलती हुई है बच्चों की, तो 63 करते हैं एक और। शीतल, अमित, विशु, अलिशा, कबीर, नंदिनी, अंशुमन, नेहा, प्रणव, याग्निक, उदय, अंजलि, परमिंदर, विजय, अदनान, सी, अदनान, डी, सी डी कैसे होगा चेक कर लेने के बाद, सी शुड बी द राइट ऑप्शन। देखो सी कहाँ पर है, अरे डोंट, यहाँ पर क्या बात कर रहे हो, डी कहाँ पर आया है, अरे भाई हटाओ इसको, पहले तो इसको हटाओ, जो अपने है ना, अब नहीं हटेगा, मैं हाँ हटा दिया ना आपने। यहाँ पर क्वेश्चन चेक करो, अब कुछ मत करो, हटाओ इसको। अच्छा, डोंट टच योर स्क्रीन, आई विल रिमूव इट, है ना, थैंक यू। यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिया हुआ है, वन ऑफ द फॉलोइंग आंसर फिगर हिडन इन द प्रॉब्लम इन द सेम साइज भी सेम होना चाहिए, एट द सेम डायरेक्शन, आपको डायरेक्शन भी सेम लिखानी है। जो अभी बता रहे हो कि डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, शायद आपने यहाँ पर बताया है, और इसका ये वाला पार्ट, इट इज़ नॉट इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन कहाँ मिलेगी, वो गलत है ये वाला, ठीक है। तो सी विल बी द राइट ऑप्शन, सी ये वाला पार्ट यहाँ पर आया, ये इतना है, ये भी इतना गया, इतना इतना, ठीक है, ओके। तो ये भी आपका हो गया, इजी क्वेश्चन था। कुछ जीके बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ए जीके बेस्ड के लिए तो आपको ऑफकोर्स क्लासेस चली रही हैं उसकी, देन वर्कआउट करेंगे इन चीज़ों के ऊपर। चलो एक पहले क्वेश्चन 65 और करो, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इन एप्टीट्यूड पार्ट, एंड देन वी विल डिस्कस सम जीके क्वेश्चंस। सेम साइज विद सेम डायरेक्शन, हर्ष, कृष्णा, विदुषी, प्रणव, याग्निक, खुशी, जसपी, सयाली, बी आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना, बी इज द राइट ऑप्शन। हरी इज सेइंग ए, एक कैसे गलत है हरी, देखो यहाँ पर लाइन सीधी है और ये थोड़ी कर्वी लीनियर है ना, आपको समझना पड़ेगा ऐसा कर्वी लीनियर, तो एक आ तो गया, ये यहाँ पर कर्वी लीनियर वाला पार्ट है, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, नहीं यहाँ पर लाइन सीधी है, इट शुड नॉट बी, दिस इज दी स्टेटमेंट, ए तो नहीं होगा, बी भी, ए का तो सिंपल है, दी एक जो लाइन है इट इज शुड बी कर्वी लीनियर। लेट्स सी, सी को चेक करते हैं कहाँ पर है ये, यहाँ पर एक कर्व है, दूसरा कर्व यहाँ पर है, तो दो कर्व होने चाहिए। कोई डी बोल रहे हो, चलो चेक करते हैं, तो ये भी नहीं है, सी इज़ नॉट द राइट ऑप्शन, ऑप्शंस में गलती है ना। मुझे डी का चेक करते हैं, लेट्स सी कि डी भी हो सकता है, और ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर आ गया है, ये इतना बड़ा कर्व है लेकिन यहाँ छोटा सा है, नो ऑप्शन, इन्होंने बी दिया हुआ है, हाँ बी आंसर फिगर, बी इज हिडन द प्रॉब्लम फिगर, बट अगेन ये गलत है। यस, अगर हम देखेंगे ये वाला पार्ट, जो ये वाला पार्ट आया है,
ये लाइन सीधी नहीं है, इट हैज़ अ कर्वी लीनियर, इफ द लाइन इज स्ट्रेट तो ये गलत है। तो अगर हम देखें तो ये थोड़ा सा इस तरह से आना चाहिए था, देन इट विल बिकम दी करेक्ट। और अगेन यहाँ पर भी कर्व है, यहाँ पर भी थोड़ा सा कर्व ऐसा आता तब ये सही हो जाता है ना। तो चलो कम टू द प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। ये समझ में आया ना कहाँ पर गलती है, आपको समझना पड़ेगा। कहीं कोई प्रॉब्लम है अभी तक किसी बच्चे को, इफ़ एनी प्रॉब्लम है, एनी स्टूडेंट इज फेसिंग एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द मिरर, ये हम लोग सब कुछ कर चुके हैं। कुछ और होगी तो एक्स्ट्रा क्लास में लेकर समझ लेंगे, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। 35 क्वेश्चन ऐसे ही आने हैं, और 35 मल्टीप्लाई बाई 4 160 यहाँ पर आ गए, करते रहो। क्रिकेट मैच ही तो है, 400 का स्कोर है मैक्सिमम, आपको स्कोर करना है 300 आपका टारगेट है कम से कम। पीडी ऑफ दी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर फॉर प्रैक्टिस करेंगे हम इसको जैन, अभी ऑफिस खुलने दो यार, ये सब चीज़ें हम लोग प्लान कर रहे हैं, डोंट वरी, कर देंगे इसके लिए, डोंट वरी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटी इज़ अ बड़ा इमाम बाड़ा लोकेटेड, चलो बताओ कहाँ पर है बड़ा इमाम बाड़ा। आपने मुझे इंस्टाग्राम फॉलो किया होगा तो मैंने फोटो शेयर की थी गाड़ी से बैठ के। सो लखनऊ के अंदर है, वेरी इजी, गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी कलर, रेड ऑरेंज रेड ग्रीन, यस रेड इज द प्राइमरी कलर। What does the abbreviation NASA stand for? National Architecture and Science Association. विशु, हाँ वो वाला दे रहे थे ना, ये वाली विंडो का। एरोनॉटिकल, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा। जापान के स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ जापान स्पेस एजेंसी? रशिया की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? जापान की जैक्सा, JAXA, जापानीज एरोनॉटिकल स्पेस एजेंसी। यूरोपियन का है ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। रशिया का है रोस्कोमोस, ROSUMOS, है ना, ROSUSMOS, यस। NSDA, नेशनल स्पेस डेवलपमेंट एजेंसी, किसकी बात कर रहे हो? NSDA, NASD की कौन सी कंट्री की? जापान की? नहीं, उसकी है JAXA, जापान की JAXA, ठीक है। और इंडिया का जो इसरो है उसकी फुल फॉर्म जानते हो, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसरो का? Where is the headquarter of ISRO located? Sriharikota, Bangalore. Sriharikota is launching site. ठीक है, तो Bangalore is the headquarter. Remember this part. RBI का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? Where is the headquarter of RBI? न्यू दिल्ली? नहीं, मुंबई, यस, रिमेंबर दिस पार्ट। इस RBI हेडक्वार्टर इज इन मुंबई। एक चीज़ और याद कर लो, अगर मैं बात करूं आपसे, इसरो, इसरो से पहले क्या हुआ करता था? INCOSPAR, बिफोर इसरो इट वाज इनकॉस्पर, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस एंड रिसर्च, कुछ इस तरह से हुआ करता था। सो अगर कोई पूछा जाता है कि बिफोर इसरो इट वाज इनकॉस्पर, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ कोर्स इट इज़ लाइक पुरानी चीज़, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन थोड़ा पता होना चाहिए, लाइक जी की, ठीक है। तो नासा, चलो ये आ जाओ क्वेश्चन नंबर 68। कैविटी वॉल आर विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या होती है? वॉल विद एयर गैप्स, है ना, वेरी सिंपल। कैविटी वॉल तो आपको सुना होगा ना, कैविटी हो गई है, कीड़ा लगना बोला जाता है कैविटी। क्या यूज़ क्या होता है कैविटी वॉल का? व्हाट इज द यूज ऑफ प्रोवाइडिंग द कैविटी वॉल? इंसुलेशन, यस, क्योंकि इसके अंदर आपने एयर फिल कर दिया, एंड एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ द हीट। तो जब आपने एयर फिल हो गई है तो आपने से सुना होगा कि इट इज़ बेटर टू वियर 2 थिन टी शर्ट्स इन विंटर्स रादर देन 1 थिक टी शर्ट, है ना। बोला जाता है कि 2 पतले कपड़े पहनोगे तो उसमें एयर गैप हो जाता है, सो इट इज़ वर्क एज अ
इंसुलेशन। चलो, अ बाइट इज विच ऑफ द फॉलोइंग, ये तो आपको पता ही होगा। अ यूनिट ऑफ डिजिटल मेमोरी, बिट, बाइट, MB, GB, MT, पता नहीं क्या क्या चीज़ आती हैं, वो देख लेना, बहुत बेसिक है। ग्रीन बिल्डिंग्स आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, लोकेशन, लैंडस्केप, ब्यूटी, इन्वायरमेंटल सुटेबिलिटी। इन्वायरमेंटल suitability है ना। ग्रीन बिल्डिंग इज समथिंग, इट इज नथिंग रिलेटेड टू द ग्रीन कलर, लाइक दोज बिल्डिंग्स विच इज हैविंग अ लेस और मे बी मिनिमल और जीरो कार्बन फुटप्रिंट ऑन द इन्वायरमेंट, सिंपल। अगर इफ यू आर लिविंग इन अ विलेज एंड यू समहाउ मैनेज टू अ साइट और इन द लाइक इन अ विलेज, और आपने कुछ भी बिल्डिंग मटेरियल, यू डिड नॉट यूज एनी बिल्डिंग मटेरियल and that thing, only you are using the sustainable low vernacular material, it is also a green building, ठीक है, as a part of the green building. Which Indian city is abutted the Arabian Sea? Yes, Mumbai. Location is very important. इससे से निकल के आता है, remember this part, that's called the Konkan coast, that's called the Coromandel coast, और मालाबार। एक चीज़ आपको याद रखनी है कि मानसून जो आता है साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आता है, और थोड़ा सा मैं अच्छा बना देता हूँ थोड़ा सा छोटा करके, क्योंकि मानसून के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आई थॉट कि मानसून की जो डायरेक्शन होती है इस तरह से आती है, एक विंग जाती है अरेबियन सी एंड वन विंग इज कमिंग फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल। सो अगर आप देखेंगे कौन सी डायरेक्शन है ये, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, कौन सी डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट। ज्योग्राफी के अंदर किसी भी विंड की डायरेक्शन, किसी करंट की डायरेक्शन, वी ऑलवेज मेजर दैट डायरेक्शन इट इज़ कमिंग फ्रॉम। अगर कोई विंड इससे ऐसे जाती है, वी विल से इट इज़ द वेस्ट विंड, because it is coming from the west direction. So now you can see this is Malabar, this is Konkan, this is Coromandel, Chennai coast, this part. So जब यहाँ से winds आती हैं तो rainfall नहीं होती है, ठीक है। Then come to the retreating monsoon, जब ये winds वापस आती हैं तो wind इस तरह से वापस आती है, like this direction. So we will say north east direction, that's called the retreating mountain or retreating monsoon winds. And during the retreating monsoon wind or maybe October-November, the only area which got rainfall, it is a Chennai coast और Coromandel coast. ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना इसको। जब विंड जाएंगी ऊपर तो रेनफॉल कहाँ होगी, इस जगह रेनफॉल होगी अच्छी खासी, पूरे इंडिया में होगी, बट जब वापस आएंगी तो यहाँ पर होती है, क्यों, यहाँ से मॉइस्चर पिक कर लेती है, और यहाँ पर दैट्स कॉल्ड ईस्टर्न घाट्स एंड द वेस्टर्न घाट्स। चलो, ज्योग्राफी का पार्ट है, ठीक है। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसको मैं समझाना पड़ेगा, इसको मैं बात करूंगा आपसे, एक बार एक क्लास होगी जिसके अंदर एप्रिल मूवमेंट ऑफ हम लोग सन को पढ़ेंगे, फिर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। इसको हम अभी तभी देखेंगे, फ़ायदा नहीं है जब मैंने पढ़ाया नहीं है तो आई कैन नॉट एक्सपेक्ट थिंग, दिक्कत आएगी तो समझाना पड़ेगा मुझे, बट वी विल हैव एन अ क्लास ऑफ द एप्रिल मूवमेंट ऑफ सन, कि सन कैसे मूव करता है, क्या क्या चीज़ें होती है, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। बट अगेन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लान सिटी, चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर, कानपुर, यस कानपुर। आर्टेड के नाम याद कर लेना, गांधीनगर, भुवनेश्वर और चंडीगढ़ के आर्टेड कौन कौन से हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेम स्ट्रक्चर इन हाई राइज बिल्डिंग pertain to which of the following, structure with square on the facade, load bearing, column and beam structure। फ्रेम स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि अपना फ्रेम बनाया ना किसी चीज़ का, यू फर्स्ट मेक अ फ्रेम ओवर है, अपने फ्रेम बना दिया, इसका एक कॉलम यहाँ पर लगाया, दूसरा कॉलम में भी यहाँ पर, और तीसरा कॉलम यहाँ पर, देन यू पुट अ बीम ओवर हेयर, सो व्हाट इज इट, इट इज़ अ फ्रेम, और फ्रेम का मतलब क्या हो गया, कॉलम। सो कॉलम एंड बीम, कॉलम क्या होता है, इट इज़ अ वर्टिकल एलिमेंट और बीम इज अ हॉरिजॉन्टल एलिमेंट। छज्जा, अब विंडोज आर मेन टू प्रोटेक्ट द बिल्डिंग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, छज्जा लगाते हैं ना दरवाजे के सामने, तो सन, विंड, टाइफून,
टाइफून क्या होता है? व्हाट इज टाइफून? साइक्लोन, यस. रिमेंबर दिस पार्ट, साइक्लोन हैव डिफरेंट नेम्स इन द डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स. इंडिया में साइक्लोन को क्या बोला जाता है? साइक्लोन ही बोलते हैं. इन चाइना, फिलीपाइंस, ताइवान, दे कोल्ड साइक्लोन टाइम साइक्लोन एज अ टाइफून. इन नॉर्दर्न अमेरिका, लैटिन अमेरिका, इट इज नोन एज, अमेरिका में क्या बोलते हैं साइक्लोन्स को? टाइफून तो यहाँ पर बोलते हैं चाइना की तरफ. वॉट साइक्लोन आर कॉल्ड इन लैटिन अमेरिका और अमेरिका? देख, टोर्नेडो, नो, टोर्नेडो इज डिफरेंट थिंग. हरिकेन, यस निवेदा, हरिकेन, गुड, अप्रिशिएट, है ना. सो हरिकेन, तमोगना, यस आई राइट. चलो एक क्वेश्चन और बताओ. ऑस्ट्रेलिया में क्या बोला जाता है? व्हाट दे कॉल्ड इन ऑस्ट्रेलिया? नहीं पता. विली विली, यस सानिया, गुड, विली विली. चलो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटी आर दी शेकिंग मिनारेट्स लोकेटेड? क्लियर है? अहमदाबाद, ठीक है, पता है. विच कलर अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट डेंजर? वाइट. अच्छा, ये किसने नहीं, सही मैं वही बोल रहा हूँ. वाइट तो वैसे पीस कलर होता है ना. तो रेड कलर इज द डेंजर. तो लाल रंग का आपने देखा होगा कि स्केल्टन बना हुआ आता है, इट्स अ रेड, लिखा ही होता डेंजर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हॉरिजॉन्टल एलिमेंट दैट सपोर्ट ऑफ द लोड अबव ओपनिंग इन वॉल इन अ बिल्डिंग? तो इट्स अ लिंटल, ठीक है. अगर ये होगा, दिस इज सपोज दिस इज ऑफ एलिवेशन, दिस इज डोर की साइज थोड़ा सा ऊपर बनाना पड़ेगा अपने को. 2.1 मीटर, इट इज़ लाइक नॉर्मल कितना होता है? 2.1 मीटर, इट्स अ नॉर्मल हाइट, इस तरह से. सो वी आर हैविंग द विंडो, एक एलिमेंट यहाँ पर आता है, एक ऊपर आता है. सो दिस इज कॉल्ड लिंटल और इसको बोला जाता है सिल, ठीक है, याद रखना. देखो इसको भी आ गया क्वेश्चन है. चलो, नेक्स्ट. थोड़ा सा और पढ़ें या फिर जार रहने दें? अभी है एनर्जी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की. चलो थोड़ा सा पढ़ लेते, संडे आज एक्स्ट्रा थोड़ा सा कर लेते हैं. और जिन लोगों की वीडियो मिस हुई है, इसको पब्लिकली अवेलेबल होगी. बच्चे मुझसे बोल रहे थे, तो यूट्यूब पर जाकर आप देख लेना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. 2021 का अगली बार करेंगे. वैसे भी 2021 का मैं सॉल्व करा चुका हूँ ऑन यूट्यूब. जैसे वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल, कोई बात नहीं, उसको भी कर लेंगे, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक्स्ट्रा क्लास वगैरह होगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. लाइक आई एन्जॉय टू डिस्कसिंग द थिंग. चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंट्री कॉल्ड एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड? मैंने मानसून वाले लेक्चर में बताया था. इट इज़ कॉल्ड तिब्बत. तिब्बत क्या है? तिब्बत इज़ अ कंट्री. डू यू लाइक तिब्बत? इज इट अ कंट्री और is a part of a country? It's a part of the China. Good. It's supposed to be a free country. And Tibet, the government in exile, that is Dalai Lama. कहाँ रहते हैं वे इंडिया में? दलाई लामा is having the refugee in India. कहाँ है दलाई लामा? जो गवर्नमेंट इन एग्जाइल, जो तिब्बत की गवर्नमेंट है, वो हमारे इंडिया से प्ले की जाती है. दैट्स कॉल्ड मैक्लोडगंज. यस सान्या, है ना, हिमाचल प्रदेश. एंड टू बी वेरी एक्यूरेट, इट इज़ मैक्लोडगंज. गुड, शीतल एंड हर्ष. इंडियन गवर्नमेंट इज ऑफरिंग द सिटीजनशिप टू द ऑल द बुद्धिस्ट मॉन्क और तिब्बतन मॉन्क, बट दे आर नॉट एक्सेप्टिंग इट. दे आर सेइंग नो, दिस लैंड इज नॉट बिलोंग टू अस. एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन दैट चाइना इज अगेंस्ट ऑफ द इंडिया. इट इज़ लाइक, ये ऐसी ही बात है कि एक कश्मीर की गवर्नमेंट पाकिस्तान में चल रही होगी, तो वी विल नॉट हैव द वेरी हेल्दी रिलेशन. सो अलग चीज़ें रहती हैं. एंड दिस वॉज द रीज़न दैट 1962 वॉर वॉज हैपेंड बिटवीन इंडिया एंड चाइना. इंडो सिनो वॉर बोला जाता है. सिनो का मतलब उनको चाइना ही बोलते हैं. एंड इंडिया वॉज डिफीटेड वेरी बैडली बाय द चाइना. दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ वन ऑफ द रीज़न फॉर द डेथ ऑफ द आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू. वो अलग है, खैर.
विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ए बेटर इंसुलेशन वैल्यू, कॉन्क्रीट वॉल, ब्रिक वॉल? यस अली बताओ क्या दिक्कत है? सिंपल है ना, कैविटी वॉल अभी डिस्कस किया था हम लोगों ने, इट्स अ कैविटी वॉल. उदय, परविंदर, पूजा, मानसी एंड ऑल दिस सिंपल. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? ये सब करे हुए हैं. ओशन वेव्स. रिन्यूएबल मतलब कितनी बार भी यूज़ कर सकते हो. लाइक माई रिसोर्सेज टू एजुकेट इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. ऐसा ना मैंने आपको बता दिया तो ख़त्म हो गया मेरे पास, है ना. सो कोई ऐसी चीज़ जो बार बार यू कैन यूज़ अगेन एंड अगेन, दैट्स कॉल्ड द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. चार्ल्स कोरिया वॉज अ ब्रिटिश आर्किटेक्ट एंड इंडियन आर्किटेक्ट. इंडियन नाम से लगता है लेकिन चार्ल्स कोरिया इंडियन आर्किटेक्ट. सिकंदराबाद से थे ना. यस. हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट है. चार्ल्स कोरिया वॉज डाइड. कब हुई थी इनके साथ? 2-3 साल पहले ही डेथ हुई थी. यस. नो, चार्ल्स कोरिया. देयर वाज एन आर्टिकल आई पेस्ट ऑन माय वॉल. लेट मी चेक. टू 2015 में इनकी डेथ हुई है मुंबई में. ओके. दी अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिफाइड आर्किटेक्ट. ये तो खैर आप छोड़ो, इनका फ़ायदा नहीं होता है. कितने याद करना होता है क्या क्या चीज़ हमें पता है. लाइक इट इज़ बेटर टू रिमेंबर द आर्किटेक्ट्स नेम रादर देन कि कौन आर्किटेक्ट नहीं है ना. तो एलोरा ग्रुप ऑफ द टेम्पल्स रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग? एलोरा और अजंता. वी विल डिस्कस इंडियन आर्किटेक्चर टेम्पल थिंग, तो आप देख लेना ऑल ऑफ दिस. जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड हिंदुज्म. यक्ष एंड यक्षिणी की पेंटिंग्स हैं, स्कल्पचर्स हैं. और यक्षिणी इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड फॉर द हिंदुज्म एंड बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, सबसे रिलेटेड है. पार्थेनन इज लोकेटेड इन विच कंट्री? पार्थेनॉन. जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टेम्पल आई ट्रेवल्ड फ्रॉम नीदरलैंड्स टू जर्मनी, Germany to Switzerland, Switzerland to Italy, Italy to take a ferry, take a ship, and to the Patras, Patras to by road by the Parthent to the Athens, and Athens में जाके फिर ग्रीस में. ठीक है. Parthenon, you remember this thing in Parthenon, Doric columns has been used. Only Doric columns is there. और बाकी हिस्ट्री क्लास में आपको बताऊंगा पार्थेनॉन के बारे में. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, लाइक इट इज़ एक्रोपोलिस. एक्रोपोलिस लाइक अ टॉप, हिल टॉप, तो वहाँ पर वो रहता था. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू द नोबेल प्राइज? बहुत बेसिक क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन का फ़ायदा नहीं है, यू नो, है ना. प्रेस करो. चलो लास्ट के 10-12 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन और. एन एस्केलेटर लुक लाइक विच वन ऑफ द फॉलोइंग? लैडर, रैम्प, लिफ्ट, स्टेयरकेस. स्टेयरकेस. Who among us the following is an architect? कर देंगे आप. लोरी है ना, लोरी बेकर. बुर्ज खलीफा इज लोकेटेड. बहुत पुराने क्वेश्चन है, आई थिंक हम लोग सब कुछ कर चुके हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द सिडनी ओपेरा हाउस? इंटीरियर. अच्छा, इसमें क्या बताओ? सेल, शेप, रूफ. इसकी इमेज वगैरह देखेंगे तो तब बात करेंगे, है ना. चंडीगढ़ वॉज प्लान बाय एन आर्किटेक्ट हु वॉज विच ऑफ द फॉलोइंग? French architect. Tsunami is the result of which of the following? T is silent. It is not to tsunami. It is tsunami. 2004 tsunami, Indian Ocean tsunami, जहाँ पर काफ़ी कुछ बहुत it was a disaster. उसके बाद काफ़ी कुछ improve किया इंडिया ने. Earthquake in the seabed. होता क्या है देखो, बहुत सिंपल तरीका है, इसको समझते हैं. सुनामी कैसा आती है? सपोज दिस इज़ आवर इंडिया. इस तरह से इंडिया है, यहाँ पर कन्याकुमारी है, और यहाँ पर आप देखेंगे इट इज़ अ वाटर. मैं सेक्शन बनाया मैंने, इट इज़ लाइक वाटर विल बी देयर ऑफ कोर्स. तो सपोज करो यहाँ पर इनसाइड द थिंग, यहाँ पर एक रॉक है एंड दिस रॉक स्लिप डाउन. तो क्या होगा? जो वाटर है ये वाला पूरा का पूरा इट विल कम डाउन. देयर विल बी ए क्रिपल इन द वाटर. जब ये होता है इस तरह से, तो ये स्टार्ट लाइक दिस. ये इवन आई शुड मेक इट लाइक दिस. इस तरह से जाती है. सो इफ अ बोट इन लाइक हेयर,
अगर आप यहाँ पानी के सेंटर में हैं तो यू विल नॉट फील एनी प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जाकर देर इज़ नो इफेक्ट ऑन द सुनामी, इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू अफेक्ट ऑन द कोस्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सैलोनेस हो जाती है ये कम हो जाती है, एंड टू मेंटेन द एंगुलर मोमेंटम, सो क्या करते हैं, वेवलेंथ बढ़ा देता है। तो एकदम से ये मान के चलो कि यू आर लाइक इट इज़ अ बीच में आ रहे हैं और आपको थैंक यू। सो द लाइक द वेव्स कैसी होंगी, लाइक 30 मीटर्स 40 मीटर्स की हाइट पर आती हैं। सो और जो याद रखना ये सब चीज़ें ड्यूरिंग दी सुनामी, अरे मत करो यार इसको, ड्यूरिंग द सुनामी इट इज़ नॉट जस्ट ओनली वन वेव, इट इज़ ऑलवेज कम विद द ग्रुप्स, जिसके अंदर आई थिंक 4th एंड जो 8th वेव होती है वो ज़्यादा डिजास्टर्स होती है, 4थी और 8वीं जो ज़्यादा सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। लाइक इट्स अ ग्रुप ऑफ द वेव्स, एक बार आएंगी फिर 10 मिनट फिर से आती हैं, लाइक आती रहती हैं, जिसके अंदर 4th एंड जो 8th होती है इट इज़ ऑलवेज वेरी डेंजरस। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओड कॉम्बिनेशन, फोर्ट्स एंड जयपुर, लेक एंड उदयपुर, टेम्पल एंड मदुरई, रेन एंड कच्छ। जयपुर के अंदर फोर्ट्स हैं, आमेर फोर्ट, बहुत सारे फोर्ट्स हैं, लेक उदयपुर के अंदर वेरी फेमस, मदुरई में टेम्पल है, मीनाक्षी टेम्पल आया भी था इस बार, रेन एंड कच्छ नो, कच्छ इज एरिड रीजन, ये रहता है। दो 2021 का मैं करा चुका हूँ पूजा, मैंने ऑनलाइन मैंने शेयर किया, डिस्कस किया, बट अगेन आप चाहते हो इस तरह का डिस्कशन तो अभी तो नहीं करा सकते, मैं भी थक गया, मुझे जाना है। सो इट इज़ द एंड ऑफ द डिस्कशन। आज की जो क्लास है ये सिर्फ ऐसे ही मैंने रखी थी डिस्कस करने के लिए, बाकी इट इज़ विल बी अपलोडेड ऑन द यूट्यूब पब्लिकली, बच्चे थोड़ा सा कर लेंगे आपका है। लेकिन अगेन हम लोग नेक्स्ट एक्स्ट्रा क्लास भी इस तरह से रखेंगे इन फ्यूचर, क्योंकि इट इज़ गोइंग टू द लास्ट बैच। मैंने आपको बता चुका हूँ 31 मई के बाद कोई भी क्लासेस नहीं होंगी, क्योंकि हमें अपग्रेड करना है पूरा सिस्टम, वी हैव टू अपग्रेड द होल सिस्टम ऑन द वेबसाइट एंड वी वांट टू डिवोट अवर सेल्फ ऑन द वेबसाइट सो दैट कि अगली बार के लिए हो सके। सो दिस इज़ द रीज़न कि आपसे मैंने 30 क्लास की बात करी है, बट आई विल ट्राई टू हैव मोर देन 35 क्लासेस, लेकिन गारंटी नहीं है, कभी अब बोलो फिर काउंट कर लो सर आपने 35 बोला था, सिलेबस कंप्लीट कराने की गारंटी हमारी, डोंट वरी। 2021 का जो पेपर है मे बी उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ले लेंगे एक्स्ट्रा क्लास किस दिन शाम के टाइम, ठीक है। अच्छा, आपकी क्लास हो गया है, ड्राइंग की क्लास है 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक, है ना, यू मस्ट हैव गॉट दिस इन ड्राइंग बैच। वी आर ऑल्सो हैविंग द ड्राइंग क्लासेस, बट आई डू नॉट टेल टू द स्टूडेंट्स टू देन हु जॉइन रिसेंटली, क्योंकि वो बैच चल रहा है, बट अगेन दोज स्टूडेंट्स वी हैव जॉइन रिसेंटली, वी आर गोइंग टू हैव द 5 ड्राइंग क्लासेस, तब आपको बता दिया जाएगा। जो पुराना बैच है इट इज़ अ लास्ट क्लास फॉर द प्रीवियस बैच फॉर द ड्राइंग, सो वी आर गोइंग टू रिपीट इट अगेन, so we will invite you over there. Yes, it is available on the YouTube. वहाँ भी करना जरूरी होता है ना मार्केटिंग, पैसे कैसे आएंगे हम लोगों को। एक्चुअली द प्रॉब्लम होता क्या है, देखो मैं बताता हूँ, ऑनलाइन क्लासेस के अंदर देयर इज़ ऑलवेज इशूज़ की पढ़ाई होती है नहीं होती है। देखो आप लोगों ने चीज़ देखी है यहाँ पर, हम लोगों ने कभी क्लास मिस भी नहीं करी है, एंड यू विल फ्रॉम द माई साइड यू विल नेवर फील कि सर का इंटरेस्ट नहीं है। मैं जब भी पढ़ाता हूँ आई विल टेक द फुल इंटरेस्ट, मैं कभी भी जिस दिन मन नहीं करेगा आई विल सेंड द मैसेज कि आज मेरा मन नहीं है और जाओ मजे करो, आज कोई क्लास नहीं होगी। ऑल्दो अभी अब तक हुआ नहीं है, नॉट अ सिंगल क्लास आई हैव कैंसिल्ड, लेकिन मैं कभी भी स्ट्रेस में लेकर नहीं पढ़ाता हूँ। तो बच्चों को थोड़ा ये रहता है कि दे आर वो मनी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो कहीं फ्रॉड तो ना हो, और मैंने बताया भी था, यस इट इज़ ट्रू। मुझे पता चला कि कुछ वेबसाइट हैं जो आर्क जेनेसिस के नाम पर, वेबसाइट नहीं, इट वाज लाइक मैसेज, दे गोट अ मैसेज कि वी आर फ्रॉम द आर्क जेनेसिस एंड ये सब प्रोवाइड करा रहे हैं, तो मैंने उसके लिए वीडियो बना कर डालना पड़ा मुझे इन चीज़ों के लिए। कुछ लोगों ने मुझे बताया भी कि सर हमें कुछ थोड़ा फ्रॉड का भी रह रहा है, वो फॉर्म भर रहे हैं, दे आर आस्किंग फॉर द मार्कशीट ऑफ UGC। या 12वीं क्लास के बच्चे को UGC का क्या मतलब है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशंस का। तो लोग कोई होते हैं ना, दे कॉपीड फ्रॉम दी समथिंग एंड वो करते हैं। अगेन आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, यू प्लीज चेक इट, कभी भी ऑनलाइन ट्रांसफर मत करो, ट्रांजैक्शन मत करो जब तक आप फुली से ना हो जाओ। इफ देयर इज अ वन क्वेश्चन इन कमिंग इन योर माइंड, फर्स्ट क्लियर इट देन जॉइन इट। लोग बेवकूफ़ बनाने के लिए हैं दुनिया के अंदर, बहुत बुरी तरह हालत रहती है। अगर आप बोलेंगे यहाँ पर कि हम इस कंट्री में रहते हैं जहाँ पर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग पहले मोबाइल फ़ोन चोरी करते हैं, इट इज़ अ रियलिटी। If someone got an accident, the first thing they will check their pocket.
So although of course all the humans are not like this, Mahatma Gandhi what said कि humanity is like an ocean. Of course there are few people which are bad, but we cannot say the whole ocean is bad. सेम चीज़ है, कुछ लोग गंदे हैं पर इसका मतलब ये नहीं कह सकते हैं सोसाइटी गंदी है, बट अगेन कर रिस्क क्यों लेना है ना. सो कुछ और क्वेश्चन है बिफोर आई कंक्लूड द क्लास. एक लेट मी थिंक अबाउट इट कि हम लोग कल से क्लास स्टार्ट करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू थिंग लाइक मे बी इट कैन बी हिस्ट्री और थ्योरी ऑफ डिज़ाइन और द कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश पैसेज. तो जो हमारा एप्रिल वाला पार्ट था वीक वो हमारा कंप्लीट कर लिया है. मैंने बच्चों के नंबर देखे हैं, मैंने पर्सनली लोगों को मैसेज किया. आई पर्सनली सेंड दिस देम मैसेज कि कहाँ पर गलती आ रही है. सो इफ़ यू आर स्कोरिंग 35 आउट ऑफ 40 इट इज़ क्वाइट गुड. लेकिन अगर 30 से नंबर कम आ रहे हैं तो सोचने वाली बात है, बिकॉज इतनी मेहनत करने के बाद भी आपको तो आना चाहिए. सो मैं उनके स्कोर पर एक बार बात करूँगा लोगों से. लोगों को मैंने शायद आपको समझ में आ रहा होगा. आई हैव कॉन्टेक्ट टू दोज स्टूडेंट्स एंड दे आर लाइकिंग. कुछ प्रॉब्लम रहती है सर. यूट्यूब पर प्राइवेट वीडियो शो हो रहे हैं. किसने बोला मानसी? वो आपके लिए शो हो रहे होंगे ना. आपने पेमेंट कर दिया है तो हमने आपको मेल भेज दी है. सो आपको जो मेल आईडी है वी एडिट. प्राइवेट वीडियोस तो नहीं शो होने चाहिए. इट इज़ ओनली फॉर यू, ओनली फॉर दी अवर स्टूडेंट्स. सब कुछ यूट्यूब पर ही होता है बट दे आर ऑलवेज ऑल प्राइवेट, है ना. सो इट इज़ ऑल ओनली फॉर द स्टूडेंट्स हु पेड. ये वाली वीडियो विल बी अवेलेबल ऑन दी पब्लिक. सो इन चीज़ों के लिए बाकी लेट्स सी कि आप क्या करना चाहते हो. मतलब व्हाट इज़ योर आइडिया टू कम टू स्टार्ट फ्रॉम वेयर. लाइक वी कैन हैव दी 3 ऑप्शंस. वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द इंग्लिश पैसेज, वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द हिस्ट्री एंड वी कैन ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम द थ्योरी ऑफ डिज़ाइन. ये जो वीक चलेगा फिर उसी में चलेगा हिस्ट्री. ओके. The problem is चलो I think Radha theory of design, Alisha Sule history. Okay, let me think, because actually I want to start the passages. Why? Because it is very important for the NATA preparation this time. They ask about 20-30 questions और passage is something which need continuous efforts. आपको समझना पड़ेगा. वो ऐसा नहीं है. हिस्ट्री समथिंग मैंने फॉर्मूले बता दिए, कुछ बेसिक चीज़ बताई, आपको आ जाएगा, है ना. बट द पैसेज इज लाइक हम एक बार कंप्लीट कर लेंगे ना 2-3 क्लासेस के अंदर, देन मैं आपको रेगुलर, जैसा फॉर एग्जांपल दिस टाइम वी आर हैविंग दी पजल्स एंड ऑल दिस रिडल्स के लिए हम डेली कुछ करते हैं. उसका जो ऑप्शन क्या था ना, मैं आपको दिखा देता हूँ. व्हाट वाज द ऑप्शन फॉर इट. स्क्रीनशॉट. ये क्वेश्चन मैंने दिया था आपको. सो अ मैन इन प्रिजन हैज़ अ विजिटर. आफ्टरवर्ड अ गार्ड आस्क द इनमेट हु द विजिटर वॉज टू हिम. द इनमेट रिप्लाइज ब्रदर एंड सिस्टर आई हैव नन, बट मेरी भाई बहन कोई नहीं है, बट दैट मैन्स फादर इज़ माई फादर. और जो मैन का जो फादर है वो मेरा, बट द मैन्स फादर इज़ माई फादर सन. तो जो हु वॉज द विजिटर ऑफ द इनमेट, उसका मतलब क्या है, उसका लड़का ही तो है. सोच कर देखो. ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या अगर ट्राई करो, लाइक मेरा बच्चा होगा, मेरे को भाई बहन नहीं है, ओके, कोई मुझसे मिलना आता है जेल में तो वो बोल रहा है ऐसा, तो इट इज़ लाइक कि उसी का लड़का है. उसने क्या बोला है, ब्रदर एंड सिस्टर्स आई हैव नन. उसके भाई बहन कुछ नहीं है पर उसका बच्चा तो हो सकता है ना, तो उसका मिलने के लिए आया हुआ है ना सन. सो ओके, लेट मी थिंक. आज मैं थोड़ा प्लान करता हूँ. कल की जो आपकी क्लास होगी वो भी एक तरह से ऐसी ही क्लास होगी, लाइक इंट्रक्शन क्लास होगी. कुछ नया नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आई हैव टू प्लान मोस्ट प्रॉब्ली. अगर आज इफ़ आई गोट अ टाइम पीरियड, तो अगर मुझे पैसेज का समझ में आया तो आई विल मेक अ प्रेजेंटेशन रिगार्डिंग कि पढ़ना पड़ेगा ना मुझे भी, कि आपको समझाना कैसा. आई नो दी हाउ टू रीड द पैसेजेस बट आई डोंट नो हाउ टू टेल यू कि हाउ टू रीड द पैसेजेस. तो उसके लिए मुझे थोड़ा पढ़ना पड़ेगा. बट अगेन कल आपकी क्लास होगी वही 7 बजे से टाइम पीरियड रहेगा. 7 to रेगुलर क्लासेज होंगी. लेकिन दिस वीक वी डिड नॉट टेक अ सिंगल ब्रेक, बट फॉर द नेक्स्ट वीक वी आर गोइंग टू हैव एटलीस्ट 1 day ब्रेक. जरूरी है एक ब्रेक होना. ठीक है, तो नो क्वेश्चन. इज देयर एनी अदर क्वेश्चन वी वांट टू आस्क और वी वांट टू डिस्कस. हैव अ नाइस वीकेंड देन, एंजॉय. कुछ क्वेश्चन है आपके माइंड में, कुछ आ रहा है, कुछ पढ़ने का, कुछ बात करने का, यू कैन आस्क मी. एंड अदरवाइज तो फिर कल मिलते हैं. सी यू टुमारो एट द सेम टाइम, नॉट द सेम टाइम, 7 AM in the morning. Our regular classes will be 7 AM.
process for of enrollment. You drop me a message on the WhatsApp. सर आज फिर से और एक क्लास है कृष्णा, आज फिर से क्लास है, मतलब हाँ ड्राइंग की क्लास होगी आज, लेकिन वो आपके लिए नहीं है, इट इज़ नॉट फॉर द न्यू स्टूडेंट्स, आपको मैंने वो बताया ही नहीं है। देर इज़ ऑल्सो ए ग्रुप जो उसके ड्राइंग का जो ग्रुप है उसके लिए है, बट वी डू नॉट इन्वाइट यू ऑन द ड्राइंग ग्रुप। क्यों? वो लास्ट क्लास है, उसका फ़ायदा नहीं है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच फॉर द ड्राइंग, सो डोंट वरी। नेक्स्ट संडे से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी ड्राइंग्स की, अभी क्लासेस रेगुलर होने वाली हैं, डोंट वरी। ठीक है, बट अगेन मेक श्योर 31st में आई एम क्लियरिंग अगेन एंड अगेन, बिकॉज आई डोंट वांट एनीवन की सर एक क्लास और ले लो। 31st मई के बाद मैं नहीं हूँ अवेलेबल, तो इसलिए जितने भी क्लासेस होंगी बिफोर 31st ऑफ मई आई विल ट्राई, हमें पूरा सिस्टम अपग्रेड कराना है। ठीक है, चलो, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ नाइस टाइम, प्लीज़ बी सेफ, बी कीप योर सेल्फ आइसोलेटेड एंड स्पेसिफिकली फॉर योर पेरेंट्स, इट इज़ वेरी मच इन नीड। ठीक है, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय बाय।